StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। बहुत सारे लोग तो पुराने हैं, सो द स्टाइल विल रिमेन सिमिलर। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी हैव इनकलकेटेड दिस ईयर। दैट नंबर 1 इज योर नोट्स। ठीक है, वो आपके पोर्टल के ऊपर सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा। उस सॉफ्ट कॉपी में ही वहां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद द करंट एस्पेक्ट जो भी थे पिछले 3 साल तक के वी हैव इनकलकेटेड, वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड थिंग, मूविंग अबाउट हाउ वी विल प्रोसीड फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। हर दिन आपका टेस्ट होगा पहले फ्रॉम 3 to 4 o'clock, राइट। उस टेस्ट के बाद we'll start our discussion would be such that we'll be completing the entire syllabus, right? You will get an idea while we start today's class. For an example, there is a question on constitution, right? जितनी भी dimensions है constitution का relation with democracy, constitutionalism, limited government, rule of law, difference between procedure established and this, so हम वो सब cover करेंगे, right? Moving forward, उसके बाद after every test जो भी आपका rankings वगैरह होगा, you will get the next day. One thing which I would like you guys to focus upon, post test assessment. ठीक है, वो इस साल बहुत जरूरी है. We'll inculcate that also. कि भाई let's say there was a test on fundamental rights, UTs and citizenship. ठीक है, हम सबसे पहले टेस्ट में प्रायोरिटी अपनी रखेंगे फंडामेंटल राइट्स को. वो सब कोई करता है, बट let's say you attempted first test and that first test was of 30 questions. 30 questions में से you are attempting 10 of FR, 10 of UTs and 10 of citizenship. And let's say आपका fundamental rights was अच्छा था, 10 में से आपके 9 questions are correct. So घर जाके you have to analyze कि भाई मेरे FR में से तो 9 questions सही हो चुके हैं already. Next coming to UTs, आपके 2 questions सही हुए, यहाँ पे आपका 1 question सही हुआ, right? So for the next examination जो आपका priority list होना चाहिए whenever we are attempting FLTs या last moment revision के लिए, आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए ये UTs एंड सिटीजनशिप. ये पोस्ट टेस्ट असेसमेंट आपको घर जाके हर हालत में करना है. वी हैव टू इन्वेस्ट टाइम. ठीक है, तभी बनेगा वो लास्ट मोमेंट रिवीजन वाली प्रायोरिटी लिस्ट, क्योंकि वहां पे नहीं पता एफआर से क्वेश्चन आएगा, यूटी से आएगा, सिटीजनशिप से आएगा, किससे आएगा. एम आई वेरी क्लियर? चलिए, देन विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोग्राम, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज तो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन. देन चलिए शुरू करें. देन चलो, let's start with the first question then. Online students, any doubt? Chaliye, good evening, let's begin. First question was, consider the following statements with respect to constitutionalism. जी सर, वो नीचे से मिलेगा सर आपको. Let's समझ. चलिए, चलो. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. पहली स्टेटमेंट है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैन एग्जिस्ट विदाउट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. यस और नो? यस. एग्जांपल, ब्रिटेन इज द एग्जांपल. चलिए, सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द फीचर ओनली ऑफ डेमोक्रेसी. नो. व्हाई? China has constitutionalism. China calls itself a democracy. Whatever you call it, China itself officially calls it a democracy. Constitution and constitutionalism में there is a difference. ठीक है, चलो पहले डील करते हैं. Let's deal with the word. यहीं से अपने नोट्स भी साथ साथ करते रहना. Constitution. Then you will be better able to have a grasp of the second statement and what it is trying to say. Let's say कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और पावर ऑफ द गवर्नमेंट, पावर नैप, limit the power. See, whatever you are telling is correct, but these are the features of the constitution, what a constitution does. ठीक है, हमारे लिए if you want to solve the PYQs of UPSC, या let's imagine कि भाई आगे भी हम कोई क्वेश्चन प्रेडिक्ट करते हैं,
So you can write down a definition. Constitution is a power map. बस अपने दिमाग में ये चीज याद रखना, it is a power map. जैसे we have a map of geography, right? What does it tells us? Different physical features. Similarly, if constitution is a power map, what it defines? It defines the powers of different branches of the government. ये चीज दिमाग में रखना. I'm not telling it for the sake of definition. We are going to use it in the concept. What is constitution? A power map which divides the powers and functions of different branches of the government. Now, यही से ही another question can be asked by UPSC, क्योंकि ये वाला dimension constitutionalism के बारे में 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका repetitively. ये dimension अभी vacant है, ठीक है? So if we see कि भाई अगली statement, if I presume, आपका शायद question भी होगा वो वाला, can I say that there is no country without a constitution? If I make the statement that there is no country without a constitution, true? Can there be countries without a constitution? Example? The ones who wish that or who are in the opinion कि भाई there cannot be any country without a constitution, raise your hands. ठीक है. और जिनको लगता है कि भाई हाँ होगी कोई ना कोई country, tell me with an example. But sir, this is the proof we have. This is a country without a constitution. See, जी. हाँ जी. Sir, see, what is constitution? A power map which defines the functions of different branches of the government: executive, legislative, and judicial. There also functions were defined. That is a different matter of fact that who was leading the executive council, provincial legislative councils bhi the. The power was divided. Right? What are the powers which the governor general has? What are the powers which CIC has? वो सब कुछ divided था. So इस वजह से I was saying focus on the definition. If statement comes, there is no country in the world without a constitution, answer is yes. There is no country in the world without a constitution. फिर आप लोगों के मन में आएगा, sir, what about dictatorship? वहां पे संविधान होगा, ठीक है? Let's understand it from this example. मान लीजिए गद्दाफी है. Do you think that Gaddafi would be carrying on all the executions by himself? He would have a different set of team to manage his finances. He would have a different set of team to manage whatever work he want to do. So there also we have what? Division of power. Right? Now, the point of difference which we have to understand, the difference is that a country has a written constitution or not. That is a matter of fact. All the countries do have a constitution. किसी ना किसी तरीके में powers would be defined. Understood? Now, if I make a statement कि भाई there are two types of constitutions. One is your written constitution. Second is your unwritten constitution. Example of written constitution: India or USA. Example of unwritten constitution: Britain. Which is the only thing which decides that a country has a written or unwritten constitution? Constituent Assembly. पुराने बच्चे मत आंसर, ठीक है? चलिए, so लिख लो इसका भी अगर UPSC asks कि भाई which is the only thing on the basis of which you can decide कि भाई a country has a written constitution or unwritten constitution. It is only that constitution should be the product of a constituent assembly which was specifically made for that purpose. अगर किसी भी देश में संविधान को बनाने के लिए वहां एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करा गया था एंड उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, देन इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एल्स इट इज अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है जी. थर्ड स्टेटमेंट जो यहीं से यूपीएससी डिराइव कर सकता है, देयर कैन नॉट बी एनी कंट्री व्हिच कंप्लीटली हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. There cannot be any country which completely has a written or unwritten constitution. Or no country completely has a written constitution or an unwritten constitution. Yes or no? Yes. How? Example. Laws and policies. ठीक है. और see, the main keyword here is conventions. चाहे a country, no country in the world has completely written or completely unwritten constitution. Written and unwritten constitutions are only distinguished on the basis of the fact that they are product of constituent assembly or not. You take an example of India. We have a constituent assembly, we have a written constitution, but is Indian constitution completely written? Don't we follow any conventions? Answer is yes, we follow the conventions. So how come it is written? Because it was product of constituent assembly. ठीक है. Another example.
इफ वी से दैट कंट्री का अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो अनरिटन ही होगा. डू यू पीपल थिंक दैट इन द कंट्री लाइक ब्रिटेन लोगों को सब कुछ दिमाग में याद है? It cannot happen, right? So people in Britain, they have something called as written, सब कुछ text होगा. So they are categorized in the category of unwritten constitution because they were not a product of a constituent assembly. USA is a written, why? It was product of a constituent assembly. Another एक चीज और याद रखने के लिए, if today we tell director sir, ठीक है, sir is sitting here only वैसे, if we tell director sir कि भाई सर हमारा सबका वीजा लगवा दीजिए, वी ऑल वांट टू गो टू ब्रिटेन, और जो भी उनके कन्वेंशंस अनरिटन लॉज है सबको हम कंपाइल करके एक किताब में लिख देंगे, ठीक है, सब कुछ एक जगह पे आ गया. विल फ्रॉम दैट डे ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन विल बी कॉल्ड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? नो. सिर्फ एक चीज याद रखना, कंट्री कैन नॉट हैव कंप्लीटली रिटन और अनरिटन. द कंट्रीज आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि भाई वो प्रोडक्ट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के या नहीं थे. एम आई वेरी क्लियर? चलिए अब आ जाइए जी अगली टर्म, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसका ये क्वेश्चन था. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक दिमाग में पहले अनऑफिशियल सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई दिस इज अ पॉजिटिव टर्म. ये कैसी टर्म है? ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है. कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी हो सकता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल नेगेटिव चीजों के लिए भी हो सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? जिस भी शब्द के साथ इज्म अटैच होता है ना, वो होता है उस शब्द की आइडियोलॉजी. तो व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ दिस वर्ड? जैसे सोशल इज्म है ना, नेशनल इज्म, जिस भी शब्द के साथ इज्म अटैच, दैट मींस द आइडियोलॉजी ऑफ दैट वर्ड. नाउ लेट्स मूव टू दिस वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पॉजिटिव वे में आइडियली ये होना चाहिए, लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द आइडियोलॉजी which says limited government. Now how the government will be limited? Defining the rules or ambit control कर देना, ठीक है जी. और fundamental rights, or can I say it is an ideology similar to the rule of law? Can I say this? ठीक है, tell me one thing in the Indian constitution which helps to achieve this ideology of constitutionalism. Only one thing is there. Only one thing in the Indian constitution which helps us to achieve this ideology of constitutionalism or limited government. Judiciary. Fundamental rights. Constitutionalism means rule of law. Rule of law means government has to be limited. One thing which prohibits or limits the government by giving you people the liberty is fundamental rights. All other provisions of the constitution, they enable the government to do something. अब कोई भी आर्टिकल ले लीजिए, they enable the government to do something. That is different matter of fact कि भाई for you or for administration or for whatever. But one thing which prohibits the power, that is the fundamental rights. ठीक है, तो जब भी आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, बट यू ऑल्सो घर जाके देखना, कोई भी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आएगा, उसके आंसर में आपको 3 ही कीवर्ड्स ढूंढने हैं, बस सिर्फ 3 कीवर्ड्स. ठीक है, वन इज लिमिटेड गवर्नमेंट, जहां पे भी लिमिट लिखा है उस ऑप्शन को आंखें बंद करके टिक मार दो. सेकंड इज एफआर एंड थर्ड इज रूल ऑफ लॉ, जहां पे भी लिखा है. आज जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जमा भी लेना, ठीक है, बिकॉज इसका जो कनेक्शन है वो इन्हीं तीनों शब्द के साथ निकलता है. Constitutionalism means rule of law. Rule of law means government has to be limited. One thing which limits the government is FR. Am I clear on this? चलिए. Now, coming to the statement of the question. कि भाई constitutionalism is only the feature of democracy. अब बताओ, सही है गलत है? Can you tell me any monarchy में can constitutionalism stay? नहीं. If this statement comes कि भाई constitutionalism is only the feature of democracy, it is correct. Why? Because only democracy is the form of government where power lies with the people. There is no other form of government where power lies with the people. Because only in democracy power lies with the people. What do you mean by democracy? Democracy consists of 2 words. Demo means people, cracy means power to rule. Right? And how in India we can say that the power lies with the people? Preamble. ठीक है, और the constitution.
The constitution itself. We the people have given power to whom? Constitution. And now everything is being run in accordance with what? Constitution. Understood? That's why constitutionalism ka ideology is the only feature of democracy. In no other system it can exist. Understood? So this statement is correct. Chaliye. Constitutionalism can exist even in a non-republic state. Yes? Perfect. Correct. So the first question ka correct answer is option number D. 1, 2 and 3 all are correct. Any doubts in what is constitution? Features of constitution, constitutionalism, rule of law, limited government, its a relation with democracy. जी जी हाँ हो सकता है. The first thing I told you कि इसके बारे में दिमाग में क्या रखना, this is a positive connotation. Constitutionalism है ही positive connotation. Understood? चलिए. जी. और किस सिस्टम में do you feel that the power of the government is restricted? नहीं, it cannot be. देखो दो ही हैं इंडिविजुअल्स. वन साइड वी हैव गवर्नमेंट, अदर साइड वी हैव पीपल. अगर गवर्नमेंट की पावर लिमिट करनी है तो लोग ही करेंगे. गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू पुट सेल्फ रिस्ट्रेंट्स. आइडली चले तो पुराने जमाने में गवर्नमेंट वाज के व्हाट किंग, जिसको हम बोलते हैं रेक्स लेक्स, है ना. गवर्नमेंट वाज किंग इज नेवर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट हिज पावर. उसके बाद फिर सिविल मूवमेंट्स होंगी, पीपल विल कम टू पावर, दे विल लिमिट द गवर्नमेंट. अच्छा टेल मी व्हाई डिड वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन और द गवर्नमेंट फॉर आवरसेल्व्स? Why India wanted or have a government for itself? क्यों है पार्लियामेंट हमारा? Again, this is your topic. पढ़ के आना चाहिए था आप लोगों को. तुरंत हम चला लेते खुद. हाँ? तो हमने तो डिसाइड कर ही दिए थे. See, India is a democracy. Democracies are of two types: direct and indirect democracy. Indirect democracies का लॉजिक क्या होता है? See, we are 140 billion people. We cannot all together go in the parliament, sit there, make a consensus between all of us. We cannot go there. That's why what we do, हम अपनी constituencies में क्या करते हैं, जो आपका MLA MPs हैं, आजकल तो politicians के साथ आपके दिमाग में भी being a critical वो एक negative connotation हो गया है. But who they are actually? They are the people whom we entrust our trust in. कि भाई ये बंदा है जो मेरे इंटरेस्ट को नेशनल लेवल के ऊपर जाके प्रोजेक्ट कर सकता है. बिकॉज वी ऑल कैन नॉट गो फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, हेंस दे गो एंड डू द लेजिस्लेशन, राइट. तो ओनली इन अ डेमोक्रेसी द आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैन एग्जिस्ट, बिकॉज हियर ओनली द पावर लाइज विद द पीपल. ठीक है, चल. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज योर डी. चलिए जी, सेकेंड क्वेश्चन. Consider the following statements with respect to the amendability of the constitution. ठीक है. First statement is there is no mention of absolute majority in the Indian constitution. Correct? True. What is absolute majority by the way? क्या होती है जी? Absolute majority 50% plus 1 of टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस. ठीक है जी, टोटल का 50% प्लस 1 इज एब्सोल्यूट. ठीक है. सो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? हमें चाहिए ऐसी मेजॉरिटी कहीं पे भी संविधान में. सी वन मोर थिंग, आवर कॉन्स्टिट्यूशन नेवर मेंशंस द वर्ड सिंपल स्पेशल दिस. कभी नहीं मेंशन करता, वो क्राइटेरिया मेंशन करता है. इज दिस मेंशन समवेयर? प्रेसिडेंट के लिए अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट मेंशन है, टर्म नहीं मेंशन. टर्म तो किसी का भी नहीं मेंशन, इफेक्टिव का नहीं मेंशन, स्पेशल का नहीं मेंशन. हाँ, ये वाला 50% प्लस 1 कहां पे चाहिए? हाँ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले इस टॉपिक का ब्रॉड वो समझो. हमने पहली डिवीजन कर ली, ठीक है. अंडरस्टैंड कि हम प्रोसीड कैसे कर रहे हैं. वी डिड कॉन्स्टिट्यूशन, वी डिड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म.
नाउ द फर्स्ट टाइप जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशंस को डिवाइड करा जाता है इज रिटन एंड अनरिटन. सेकंड बेसिस ऑन द व्हिच कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिवाइडेड इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. ठीक है, जब भी हम रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, अच्छा टेल मी, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट वैसे अमेंडमेंट के साथ रिलेटेड है. इन हाउ मेनी वेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड? सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, उन सबको स्पेशल में कैटेगराइज करेंगे. सिंपल, स्पेशल, थर्ड. कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही तरीका है. अच्छा, सी. पहली चीज याद रखना, वी आर डूइंग द फ्लेक्सिबल प्रोविजंस. व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल? बिकॉज वी कैन इवन हैव अ वर्बल अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन आल्सो बी अमेंडेड वर्बली. पहली चीज लिखो, मोस्ट पीपल हैव डाउट ऑन दिस. अगर उनको फुल स्टॉप या कॉमा लगाना है कहीं पे, दे नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज डन बाय वर्बल चेंज. कैसे होता है? पहले वॉइस वोट ली जाएगी. The people who are in support of this say aye, ठीक है. The people who are against it say no. अगर स्पीकर को आवाज क्लियर नहीं हुई, they will make you sit separately, कि हाँ वाले इधर आ जाइए, ना वाले इधर आ जाइए. Then he will ask to count your vote. फिर आपकी वोट काउंट करी जाएगी. ठीक है, this is called as verbal change. One example that Indian constitution is called as flexible. ठीक है, दो तरह के constitution है, rigid and flexible. Rigid में which will lie? Constitution of United States of America. Flexible में who will lie? UK, take an example. But our constitution is a blend of both, right? Flexible में first example is this. Second example in flexible is simple majority. ठीक है, and rigidity why? Take example of special majority. ठीक है जी, we have special majority. Now let's talk about the amendments of the constitution. अमेंडमेंट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, तो उसका यही कवर कर लेंगे स्पेसिफिकली. जी मैम, जी मैम, डिवीजन ऑफ वोट्स वर्बल अमेंडमेंट का ही पार्ट है, वो जो मैंने सेकंड स्टेज बताया. लेट्स कम टू द अमेंडमेंट. सबसे पहले, इफ द प्रोसीजर इन द हाउस हैज टू बिगिन, क्या चाहिए होता है? कोरम. व्हाट इज कोरम? 10% तो भारत में है. व्हाट इज कोरम? हाँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ पर्सन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मीटिंग. ठीक है, और द प्रोसीजर. सो दैट इज क्वारम. इंडिया में क्वारम इज 1/10. वंडरफुल, 1/10 इज द क्वारम. नाउ सबसे पहला आ गया अपना सिंपल मेजॉरिटी. व्हाट इज द क्राइटेरिया? 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. नाउ इससे एक चीज प्लीज समझ लेना, हम कंफ्यूज यहां पे कहां होते हैं. वी कंसिडर दिस स्टेटमेंट एज 50% ऑफ द मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिससे कॉनोटेशन क्या चली जाती है कि भाई अगर 545 का हाउस है तो पहले तो 545 का हाफ शुड बी प्रेजेंट एंड वो वोट कर रहे हो, और उसके बीच में से भी 50% प्लस 1 हम देख लेंगे. ऐसा नहीं है. ठीक है, ओनली द कोरम इज रिक्वायर्ड. क्लियर? कोरम अगर होगा तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ फिर भी अमेंडमेंट शुरू हो सकता है. कैन एनीवन टेल मी कि भाई व्हिच इज द प्रोविजन व्हिच विल लाई अंडर दिस? हाँ, तो वही लिखा है ना, 50% ऑफ द मेंबर शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग. अगर कोरम प्रेजेंट है, 545 की स्ट्रेंथ है, कोरम कितना हो गया? 54.5, मतलब 55 का हो गया. 55 लोग जब शुरू बैठेंगे तब ये प्रोसीजर शुरू हो सकता है इसका. उसमें से भी 55 का 50% शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग, फिर उनकी स्ट्रेंथ गिनी जाएगी. अंडरस्टूड? 55 का 50% शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग. जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे उनका 50% प्लस 1 शुड बी देयर. कैन यू टेल मी which article will lie under this? Article 3 of the Constitution. Wonderful. क्या है जी Article 3? Changing the names, border, etc. ठीक है जी. तो what can you infer from this? क्या इंफर कर सकते हो जी इससे? ये वाला टॉपिक हमारे कहां पे फिट होगा, ये लिख लेना वहां पे. जब वो टॉपिक आएगा तो विल डिस्कस. फेडरलिज्म में फिट होगा. इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विद व्हाट? विद अ यूनिटरी बायस. हम बात करते हैं ना वो, तो यहां से यूनिटरी बायस प्रूव होता है. 15 मेंबर, 15 एमपीज भी अगर आ गए
तो दे कैन चेंज द नेम, एरिया, बाउंड्री ऑफ द स्टेट. अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट आर्टिकल 3 इज. ठीक है. नाउ याद रख, चलो ये बाद में करेंगे किसी. हाँ, 15 मेंबर्स कैसे चेंज करेंगे? 55 इज द क्वोरम. मान लीजिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेट से इसका आधा ही मान लो आप, 28 है. 28 बंदे वोट करने लगे, कितनों की हाँ चाहिए? 15 की. ठीक है, दे कैन चेंज इट. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड काइंड. पहले एब्सोल्यूट की बात कर लेते हैं. एब्सोल्यूट का मतलब होता है यार 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. लिख लो 50% प्लस 1 ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. दिस मींस कितने बंदों की हाँ चाहिए? लेट्स से 100 की स्ट्रेंथ मान लो. तो ये वो वाला क्लॉज है कि भाई 51 बंदे हाँ बोलें. दिस इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. 50% प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. और इसमें बड़ा बड़ा क्रॉस लगा के लिख लो, दिस इज नोवेयर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नोवेयर. ठीक है जी. लेट्स कम टू द थर्ड वन. थर्ड इज योर इफेक्टिव मेजॉरिटी. क्या जी? हाइपोथेटिकल माना है हमने कि 545 मान लो, उसके बेसिस पे कर लेना. 545 का आधा अपना कितना हो गया यार? 273-74 के करीब हो गया. हाँ, उतने. लेट्स कम टू इफेक्टिव मेजॉरिटी. व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी? इफेक्टिव मेजॉरिटी ना सारी की सारी गेम प्ले करती है कहां पे? इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस पे. कहां पे गेम प्ले करती है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस पे. व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस? हाँ, टोटल सीट्स माइनस द वैकेंसीज. टोटल सीट्स माइनस द वैकेंसीज. लेट्स से टोटल स्ट्रेंथ इज 545, वैकेंसीज मान लीजिए हमारी 50 हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 540. तो इसकी मेजॉरिटी गिनी जाएगी. ये कहां पे यूज करी जाती है? वंडरफुल. वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में. इज इट रिटन इफेक्टिव मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या लिखा है? वंडरफुल. द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स देन प्रेजेंट. दिस इज हाउ इफेक्टिव मेजॉरिटी इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. किसके केस में? हाँ, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑल्सो. नाउ यू पीपल से ना लक्ष्मीकांत जी ने गलत लिखा है, ये करा है, वो करा है ना. सो उन्होंने क्या करा है? उन्होंने बस इफेक्टिव मेजॉरिटी लिख दी है. ठीक है, इट इज नॉट रॉन्ग. थ्योरेटिकल टर्म्स में वो इफेक्टिव मेजॉरिटी है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो थ्योरेटिकल वाला नाम नहीं दे रहा बस. Our constitution says that majority of all the members then present. What is that? In effect, it is effective majority only. Now, let's come to the last part, that is your special majority. Achha, what is special majority? Anything other than simple majority. ठीक है जी. For our purpose, just remember for prelims, anything, any majority other than simple and effective in the Indian constitution is special majority. Special majority is nowhere defined, no perfect definition. Our purpose के लिए जितनी भी majorities इन दोनों majorities के बाद हमें संविधान में लिखी हैं, all those are special majorities. ठीक है जी. तो इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है. स्पेशल मेजॉरिटी की 3 टाइप्स होती हैं. सबसे पहले आती है टाइप 1. व्हाट इज टाइप 1? टू-थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग. कहां पे यूज होता है जी? ये 2 फेमस आर्टिकल नोट कर लो जहां पे फंसाएगा. 3 नहीं, वो दूसरा चला गया. 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% प्लस 1 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. आर्टिकल 249 एंड 312, ये 2 फेमस आर्टिकल है. यही फंसाएगा, इसके बिना नहीं पूछेगा. 249 articles is if Rajya Sabha wants to pass if Rajya Sabha says or passes a resolution in national interest कि भाई पार्लियामेंट अभी स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकता है, दैट इज 249. वो कैसे पास होगी? 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से. ठीक है जी. दूसरा आर्टिकल 312, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. ठीक है जी. अच्छा, इसको अगर घुमा के कोई टेस्ट सीरीज वाला आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई AIJS विल बी क्रिएटेड बाय विच अमेंडमेंट, यही वाली ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का अगर घुमा के दे देना प्रैक्टिकली, तो इट विल बी क्रिएटेड बाय व्हाट? दिस ओनली, फर्स्ट वन. ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना आपने. चलिए, सेकंड काइंड इज, व्हिच इज द सेकंड वन? एब्सोल्यूट तो देखो हमारे संविधान में है ही नहीं है. बची 2, सिंपल एंड इफेक्टिव. उन दोनों को छोड़ के जो भी मेजॉरिटी आपको मिलेगी दैट इज स्पेशल ओनली. ठीक है जी. जी हाँ जी जी. प्रेजेंट होंगे तभी तो वो पार्लियामेंट फंक्शन करेगी. हाँ जी, उस दिन का प्रोसीजर शुरू होगा. जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं, हाँ पहले क्वेश्चन पूछिए जी. प्रोसीजर शुरू हुआ,
अगर जैसे ही अगर वो भी कहते हैं वो लेकिन हट जाते हैं, अगर 55 में से 54 भी मेंबर्स हो जाते हैं तो उसी तरह प्रोसीडिंग्स कैंसिल कर दी जाती है ना? नहीं, बिल्कुल। इट्स लाइक 100 people are getting the admission. I say that कि भाई 100 में से even if 80 people come, that is the quorum, तो मीटिंग हमारी शुरू हो जाएगी, प्रोसीजर विल बी स्टार्टेड। उसके बाद 80 लोगों में से कितने भी लोग वोट करें उसका मुझे 50% प्लस 1 चाहिए। दिस इज द वर्ड, ठीक है। दैट्स व्हाई वी वर सेइंग कि भाई मिनिमम 15 मेंबर भी आके आर्टिकल 3 के अंदर स्टेट का नाम, बाउंड्री चेंज कुछ भी कर सकते हैं। परफेक्ट एग्जांपल व्हिच यू कैन कोट इन मीन्स फॉर शोइंग दैट इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज अ फेडरल विद अ यूनिटरी बायस। एम आई वेरी क्लियर? कोई भी डाउट है यार? ठीक है, चलिए आगे। जी सर। कॉन्सेप्ट ऑफ विप केम, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। विप भी डिस्कस करते हैं, आज है पेपर में। चलिए जी, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 समझ में आ गया जी। लेट्स मूव टू द टाइप 2। टाइप 2 में लिखो, टू कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली। दो कंडीशंस को साइमल्टेनियसली फुलफिल करना है। इसके बारे में भी मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है। कैन एनीवन एक्सप्लेन कि भाई व्हाट इज बेसिकली, हम ये बात यहां पे करेंगे सेकंड के अंदर, आर्टिकल नंबर 368 के अंदर जो मेजॉरिटी दी गई है उसकी, ठीक है। तो अगर हम 368 की बात करें, व्हाट इज द प्रोसीजर? इस साल ना 3-4 बार ये न्यूज में था, क्योंकि चाहे हमने वुमेन वाली रिजर्वेशन लेके आनी है ना, उसके बाद चाहे देयर इज साइमल्टेनियस इलेक्शंस लेके आना, सब में 368 इज इन्वॉल्व। तो इस वजह से इस साल के लिए इसका प्रोसीजर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ 368? एनीवन रेज योर हैंड एंड यू कैन एक्सप्लेन इफ एनीवन नोज। क्या? लेट्स टेक 100। 100 इज द स्ट्रेंथ। 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए और 50% होना चाहिए। जैसे कि 2/3 कितना हो गया? 66, बट 66 का हाफ नहीं, 100 का हाफ 50 होना चाहिए। तो 50 नहीं, ये टू कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली। सबसे पहली कंडीशन, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। वो प्रेजेंट एंड वोटिंग किस में से हो सकता है? क्वारम में से भी हो सकता है। मीटिंग तभी शुरू हो जाएगी अगर आपका क्वारम है तो। मान लीजिए 55 लोग आ गए, क्वारम आपका है। पहली कंडीशन क्या है? 2/3 ऑफ द मेंबर शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। हमने मान लिया 55 का 2/3 कितना हो गया? इट वुड बी अराउंड योर 18, 36, 37, 38 हो गया, ठीक है। लेट्स से 38। इफ 38 मेंबर्स आर वोटिंग, तो पहली कंडीशन तो सब्स्टिट्यूट हो गई, फुलफिल्ड। बट इसमें हमें दो कंडीशंस को साइमल्टेनियसली फुलफिल करना है। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। वो कैसे पूरी करोगे? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली कंडीशन का मतलब ये नहीं लेना कि भाई मीटिंग इसमें या 368 के अंदर चीज शुरू ही तब होगी अगर 2/3 प्रेजेंट है या नहीं। दो मेजॉरिटी साइमल्टेनियसली चाहिए। जितने बंदे वोट कर रहे हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन उनका 2/3 मेजॉरिटी शुड मैच 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये मेजॉरिटी इज 368, द टफेस्ट वन। हाफ हमें यस चाहिए, हाफ हमें यस चाहिए। वो जो है मैच करना चाहिए 2/3 से। मैच करना चाहिए जितने बंदे वोट कर रहे हैं उनका 2/3 से। 2/3 मेंबर शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो देखो देखो, सी कंफ्यूज कहां पे होते हो? टर्मिनोलॉजी में। दैट्स व्हाई ऑलवेज से रीड द बेयर एक्ट्स। यहां पे ये नहीं है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो देखो देखो, कोरम तो मीटिंग शुरू कर देगा, लीव दैट अपार्ट। इसमें दो कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। 2/3 तो हमें मेजॉरिटी चाहिए उनकी जो प्रेजेंट हैं और वोट भी कर रहे हैं। लेट से 100 बंदा है जो प्रेजेंट है और वोट भी कर रहा है, ठीक है। 100 बंदे में से हमें 67 यस चाहिए, लेकिन दिस 67 शुड ऑल्सो बी व्हाट? शुड बी 50% प्लस 1 ऑफ टोटल हाउस। अंडरस्टूड? टू कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली। 2/3 तो उनकी मेजॉरिटी चाहिए भाई जो वोट कर रहे हैं प्रेजेंट होके, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, लेकिन उनका 2/3 शुड ऑल्सो बी 50% प्लस 1। अंडरस्टूड? दिस इज 368। क्लियर है जी? इसके अंदर क्या अमेंड होता है? आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो 368 के अंदर क्या क्या चीजें अमेंड हो सकती हैं? दे आर ऑल्सो मेंशन्ड देयर ओनली। यहीं से ये एक और चीज ड्राइव होती है। इफ आई से दैट आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने सिंपल मेजॉरिटी में डिस्कस करा, ठीक है, इज दैट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
हाँ बताओ, चलो सोचो अगेन। इज आर्टिकल 3 ऑफ द, पता है सबको आर्टिकल 3 क्या है जी? टेल मी, डू यू नो? यस यस मैम। हाँ जी, बाउंड्रीज। क्या ये आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है? इट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज। ओपन योर बेयर एक्ट्स एंड रीड। लेके आयो कल की क्लास से, प्लीज ब्रिंग द बेयर एक्ट्स। आज तो सेलिएंट फीचर्स वाला था। सो आर्टिकल 3 इज आल्सो द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, बिकॉज व्हाई? इफ यू आर चेंजिंग द नेम, तो हमें कहां पे चेंज करना होगा? शेड्यूल्स में। वी नीड टू चेंज द शेड्यूल्स। हमने तो यहां तक बात कर ली कि भाई अगर आपको कॉमा भी लगाना है तो यू नीड टू चेंज अ वर्बल अमेंडमेंट, है ना? बट अंडर आर्टिकल 3 इफ यू आर मेकिंग अ चेंज, इट हैज टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, but that constitutional amendment will not be considered an amendment of the constitution for the purpose of article 368. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे भी अमेंड हो सकता है, ठीक है? सो इस बात से मेरे कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? अमेंडमेंट का मेजॉरिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अमेंडमेंट का मेजॉरिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कि भाई स्पेशल मेजॉरिटी से ही अमेंड होगा। अगर आपको कहीं भी दिया है भाई 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन वेरियस वेज। वर्बली भी अमेंड हो सकता है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी आल्सो अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? बट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर 368 आल्सो। बट 368 के अंदर जो प्रोविजंस भी अमेंड कर सकते हैं वो 368 के अंदर ही लिखी है। दिस इज ब्यूटी अबाउट 368। 368 अपना प्रोसीजर, अपने अंदर कौन सी प्रोविजंस है जो अमेंड कर सकते हैं, वो अंदर ही मेंशन करता है। हाँ मैं बताता हूं उसमें क्या है। देखो, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो फ्लेक्सिबल प्रोविजंस हैं, पर लेकिन फ्लेक्सिबल प्रोविजंस में भी तो टाइम के साथ चेंज करना पड़ सकता है, तो उनको रख दिया हमने सिंपल मेजॉरिटी के अंदर। और जो टफ प्रोविजंस हैं, जिनमें हमें चाहिए कि भाई इसमें सोच विचार ज्यादा हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल द वंस इन्वॉल्विंग द फेडरल थिंग्स, फेडरल वाली सारी की सारी चीजें कहां जाएंगी? 368 में। तो 368 इज दिस मच इंपॉर्टेंट। अपना प्रोसीजर, अपने अंडर कौन सी प्रोविजंस अमेंड होंगी, वो अपने आप ही मेंशन करता है। बट यहां से डोंट ड्राइव कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ओनली कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। नो, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी आल्सो। एग्जांपल इज योर आर्टिकल नंबर 3। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट मैटर कैन इवन बी अमेंडेड वर्बली। याद रखना ये चीजें, ठीक है? तो ये थोड़ा एरिया ना, फिलोसॉफिकल एरिया कॉन्स्टिट्यूशन का अनएक्सप्लोर्ड है यूपीएससी के द्वारा, तो इसमें एक्सप्लोर कर सकता है। चलिए उसके बाद आ जाइए। अच्छा, इसमें ना जहां पे आपने लिखा है 368, यहां पे वन मोर क्वेश्चन। 368 वाली मेजॉरिटी और कहां पे यूज होती है जी? वन मोर फेमस थिंग, जहां पे 368 वाला प्रोसीजर है, एक जगह और यूज होता है, रिमूवल ऑफ जजेस। वंडरफुल, यहीं पे लिख लो, रिमूवल ऑफ जजेस के लिए भी 368 है। तो अगर दे दे द प्रोसीजर इन 368 एंड रिमूवल ऑफ जजेस इज सेम, यस, ठीक है जी। चलिए उसके बाद, विच इज द टफेस्ट मेजॉरिटी? अभी तक हमने करा एब्सोल्यूट, बट टफेस्ट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। इज इट करेक्ट? impeachment of Indian president. Polity is very technical. रिमूव हमेशा कौन होता है? जिसका कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, ठीक है? सीजीआई दीपक मिश्रा 2017 वाले केस में न्यूज़पेपर ने वायरल कर दिया था कि इंपीचमेंट ऑफ सीजीआई, नहीं, इंपीचमेंट सीजीआई का नहीं होगा, ही विल बी रिमूव्ड बिकॉज ही हैज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। हैव यू एवर हर्ड हु अपॉइंट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नो वन, दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज impeached. The word removal is not used for him. So don't use the word removal for anyone except the president of India. Understood? Why? क्योंकि removal किनका होगा? जिनकी appointing authority. If someone has appointed me in this institute, he only has the power to remove me. ठीक है? Can I remove the CEO of this institute? No, उसका तो अपना है, he will be impeached. ठीक है? चलिए, so इनके लिए यूज करो, नोट करो, toughest majority in the Indian constitution is for Indian president. Which majority is required? 2/3 of the total strength of the house. तो यहीं से ही आपका एक और लाइन डिराइव्ड होगा अगले, इसी क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में है। चलो क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। सेकंड, द मेजॉरिटी यूज्ड फॉर द इंपीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज इवन टफर देन द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यस, डेफिनेटली यस। अब समझ में आया? क्योंकि एब्सोल्यूट में हमें क्या चाहिए जी? 50% प्लस 1 ऑफ टोटल। यहां पे क्या चाहिए? 2/3 ऑफ द टोटल। ठीक है, क्लियर? कोई भी डाउट? पक्का? चलिए, थर्ड स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन इवन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। यस, आगे लिख लो एग्जांपल आर्टिकल 3। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स देन प्रेजेंट।
व्हाट इज दैट? इफेक्टिव मेजोरिटी। बस ठीक है। आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, पहले दो क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है? पक्का? चलिए लेट्स प्रोसीड। वो एक क्वेश्चन आएगा, हम उसमें करते हैं विप वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलिए चलो, उसके बाद हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है। जो ये फीचर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना यार, ये क्रैमिंग वाला पार्ट है, तो आप लोग रट लेना इनको। ये रटने वाला, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। जो ब्रॉड सेंस है मैं वो समझा देता हूं बेसिकली आपको। देखो, देयर आर टू नेशंस बेसिकली। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर आप ओरिजिन भी देखो तो कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़े बहुत परेशान थे, ठीक है? उन्होंने जाके क्या करा, अमेरिका वाली साइड पे जाके अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू कर लिया। तो इस वजह से जो भी ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल उसके अपोजिट वो अपने आप को नाम देते हुए, ठीक है? इफ ब्रिटेन हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम, बोलेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इफ दिस इज कॉल्ड लिफ्ट, वो बोलेंगे एलिवेटर, ठीक है? तो ऐसा सिस्टम उनका चलता है। एवरीथिंग इज अपोजिट, राइट? नाउ ब्रिटेन के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जिसका आप नाम लिख लो, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। व्हाट इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी? पार्लियामेंट इज सुप्रीम। देखो, इंडिपेंडेंट, सुप्रीमेसी एंड कमिटेडनेस, तीनों शब्द डिफरेंट हैं। व्हेन वी यूज द टर्म ना इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड कमिटेड जुडिशरी, सब डिफरेंट है। पॉलिटी में कुछ सेम नहीं है। सो वी कैन नॉट से पार्लियामेंट इज सुप्रीम। और हाँ जी सर, हो सकता है, बट जुडिशरी शुड नॉट बी कमिटेड। जब भी हम कमिटेड का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, कमिटेड हम क्या सोचते हैं कि इट इज कमिटेड टुवर्ड्स इट्स आइडियल्स। पर जब हम यूज करते हैं टर्म कमिटेड जुडिशरी, वो यूज किसके लिए होता है कि भाई वो गवर्नमेंट की तरफ कमिटेड है, विच आइडली इट शुड नॉट, बिकॉज आइडल सिचुएशन क्या होती है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट? चलो, ब्रिटेन फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। व्हाट इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी? पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ठीक है जी। और पार्लियामेंट कैन डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू डू, ठीक है? हाँ जी, विच मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, यहां पे ना दो चीजें निकलती हैं। पार्लियामेंट बेसिकली एग्जीक्यूटिव को भी होल्ड करता है, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर भी होता है, ठीक है? नाउ यहां पे इन द कंट्री ऑफ ब्रिटेन, सिंस पार्लियामेंट इज सॉवरेन, मतलब देयर इज नो अथॉरिटी ओवर एंड अबव पार्लियामेंट। फॉर एन एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल याद रह गई तो अच्छी बात है। अपना 2019 में जब हम सीएए एक्ट लेके आए थे, है ना, तो उस वक्त के ऊपर, सिंस वी एक्सक्लूडेड मुस्लिम्स, देयर वर डिफरेंट रीजंस फॉर इट, वी विल ऑल टुगेदर एक्सप्लोर इट वंस वी आर डूइंग सिटीजनशिप। तो बेसिकली मुस्लिम्स वर एक्सक्लूडेड आउट ऑफ दैट एज अ कम्युनिटी। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वांटेड टू इंटरवीन। वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहता था एज अ एमिकस क्यूरी। व्हाट इज एमिकस क्यूरी? व्हेन यू आर नॉट पार्टी टू दैट केस बट स्टिल यू वांट टू बी इन्वॉल्व्ड, राइट? Our Supreme Court clearly said at that point of time, no, India is a sovereign country, hence you have no rights to interfere, right? So this is sovereign. What is sovereignty? Matlab, when you are independent to take decisions in your internal as well as external sphere. Now, here we have parliamentary sovereignty. Matlab, parliament is sovereign to do whatever it wants. Now, हमारे पास आपने एक कॉन्सेप्ट और सुना होगा, that is called as separation of powers. मतलब that is judiciary, executive and legislature. Judiciary किस लिए होती है? To keep check on both of these. Now, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है कि भाई जुडिशरी is independent in nature. What is independent? No one will interfere in the working. But judiciary is not supreme in nature, और supremacy नहीं है जुडिशरी की। इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट कोई भी तरीके का कानून बना सकता है। पार्लियामेंट कैन मेक एनी काइंड ऑफ लॉ, बट what only does judiciary can check? कि भाई वो कानून अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, सिर्फ इतना ही चेक कर सकती है। इट कैन नॉट क्वेश्चन द लॉ,
लॉ को क्वेश्चन नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। क्लियर? नाउ भारत में क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी और सुप्रीमेसी। दिस मीन्स हु इज सुप्रीम? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। Even parliament is below the constitution. And why constitution is supreme? But हाँ ठीक है जी, constitution is supreme in that sense कि भाई it is giving power. अगर हम power structure के top पे चलें तो it is supreme. But why has it been made supreme? Wonderful. We are a democracy. Democracy में power lies with people, and we the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic. Understood? That's why constitution in India is supreme. Understood? When constitution is supreme, here also check कौन रखेगा? Judiciary ही रखेगी. But judiciary किस पे check रखेगी? Even on the legislative actions and on the executive actions. समझ आई यहां तक बात? पक्का क्लियर हुई? बिकॉज इसके और डेप्थ में जाने लगे हम। यहां तक पक्का क्लियर है? कोई भी डाउट तो नहीं है? नहीं रख सकते जी, बिकॉज पार्लियामेंट इज सॉवरेन। अगर उन्होंने लॉ बना दिया, वो लॉ उसी तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, उसको चेक रख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एक्शंस। नाउ इसी में ही हम वी विल कवर मानेका गांधी केस। So 3 केस बेसिकली इन इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी 1980s के टाइम तक यही 3 केसेस थे which are cases of judicial activism। ठीक है, इनके बिना तब तक इंडियन जुडिशरी एक्टिव इतनी थी नहीं। 1967 से पहले तो जुडिशरी का पैसिव फेज चलता था। द रीजन बिहाइंड वाज कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड थी, तो वो इतना रिस्क लेता नहीं था। 1967 केम द फर्स्ट थिंग व्हेन गोलकनाथ केस केम। गोलकनाथ के बाद थोड़ा बहुत एक्टिविज्म आने लगा which finally culminated into केशवनंद भारती केस। ठीक है, जहां पे केशवनंद, इसको ना रफ रनिंग में नोट्स बनाते रहो, हेल्प यू रिवाइज। ये सारी चीजें चाहिए एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, जैसे क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, तो केशवनंद भारती केस वाज द फाइनल कल्मिनेशन। यहां पे यू विल सी कि भाई जो एक्टिविस्ट जुडिशरी का फाइनल कल्मिनेशन केशवनंद भारती में हुआ, दैट लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। एंड इफ टुडे आई आस्क यू व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशरी इन द वर्ल्ड, इंडियन जुडिशरी। व्हाई? Because of the doctrine of basic structure. We'll discuss why doctrine of basic structure makes it the strongest one. ये तो करते हैं कि भाई basic structure makes it, why it makes it strongest one. We'll discuss that also. But come. तो मानेका गांधी केस इज 1980। ठीक है, यहीं से 2 कॉन्सेप्ट हमें करने हैं, दिमाग में बिठा लो। एक तो डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम, यहीं से हो जाएगा। आर्टिकल 19 में व्हाट इज मेंशन्ड? लिबर्टी और फ्रीडम? 19 फ्रीडम, right to freedom of this, freedom of this, freedom of this। ठीक है, आर्टिकल 21 protects your personal liberty। ठीक है, so what is the difference between both of them? So the story goes behind back to 1980। पिछले स्लाइड के कॉन्सेप्ट के साथ भी रिलेटेड है, ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, now till 1980s what happened was कि भाई, वैसे एक चीज और याद रखना अभी के लिए, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के लिए, आपको यूपीएससी अगर चाहे लिबर्टी पूछता है चाहे आपको फ्रीडम पूछता है, आपके जीएस के लिए एक ही चीज है फॉर योर एमसीक्यूज। राइट नाउ इट इज वन ओनली, आई विल टेल यू व्हाई, वो हम समझने वाले हैं, बट एक बार दिमाग के लिए बैठा के रख लो, फॉर यू लिबर्टी एंड फ्रीडम एक ही चीज है। ऑप्शनल में देयर कैन बी डिफरेंस। ठीक है, उसका स्टोरी भी बात करते हैं उसके बारे में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 1980, 1980s तक जो अपना फ्रीडम था मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम का मतलब था जी कि भाई राइट्स ऑफ फ्री मैन, राइट्स ऑफ फ्री मैन, कि भाई जो बंदा बाहर है, आजाद है, उसकी राइट्स को वर्ड फ्रीडम डिफाइन करता था आर्टिकल 19 का। दिस इज बिफोर 1980, रिमेंबर। ठीक है, सो ये बाहर डिफाइन करता था। नाउ उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 20, 21 एंड 22। अभी तो 21 का यू विल फील दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 28, 22 एंड 21, बट 20, 21 एंड 22 किस चीज में लाई करता है? किसके बारे में? आर्टिकल 20 किसके बारे में बताता है? व्हाट इज आर्टिकल 20 अबाउट?
प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, और 22 डिटेंशन। तो ये सब आर्टिकल्स ना 20, 21, 22 इनिशियली बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसीलिए इंस्टिल करे गए थे, राइट्स ऑफ अ डिटेन्ड पर्सन, कि भाई जो कैदी है उसकी राइट्स क्या है, ये था 2021 22 में। सो टिल दैट टाइम द वर्ड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 मींस राइट टू लाइफ, लिखा है ना वहां पे राइट टू लाइफ। सो राइट टू लाइफ ओनली मींस वन थिंग, एब्सेंस ऑफ डेथ। इसका इतना ही मतलब था। सो टिल दैट टाइम फ्रीडम वाज द राइट ऑफ अ फ्री मैन, आर्टिकल 21 वाज राइट्स ऑफ अ डिटेन्ड पर्सन, एंड राइट टू लाइफ अंडर 21 मेंट एब्सेंस ऑफ डेथ। बस इतना ही था, ताकि पुलिस जब पकड़ के लेके जाए तो व्हाट इट शुड डू, इट शुड नॉट मेक अ पर्सन किल, उसको अपनी राइट्स मिले। नाउ आफ्टर इन और इन मानेका गांधी केस 1980 सुप्रीम कोर्ट ने यूज करा डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट, डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन। व्हिच डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन। जी, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन? हम आर्टिकल जब 13 करेंगे ना तो वी विल डू अ लॉट ऑफ डॉक्ट्रिन्स, 12-13 डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ हाँ सेवरेबिलिटी, वंडरफुल, हाँ तो ये सब करेंगे, ठीक है। उनमें से वन ऑफ द डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन, व्हेन द जुडिशरी डज नॉट गो इन अकॉर्डेंस विद व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पीपल मेंट, उस पे अपनी कलाकारी दिखाती है, उसकी क्रिएटिविटी दिखाती है। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिएटिविटी, सिंपल भाषा में, राइट। जुडिशरी ने इसमें क्या बोला कि भाई liberty under article 21 should not only means what, should not only means absence of death. A person should also be free to choose whatever he wants to do. ठीक है, if a person wants to get a passport and he wants to visit outside the country, वही था मानेका गांधी केस, उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। He said even if person wants to have a passport, go outside, everything is covered under article 21. So this extended the scope of article 21 also. So जो पहले फ्रीडम था आर्टिकल 19 में, दैट वर राइट्स ऑफ फ्री पर्सन, तो आर्टिकल 21 भी अभी क्या करता है, वही सब राइट्स देता है। और इसमें प्लेथोरा ऑफ राइट्स खुल गया, फिर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, एमसी मेहता केस है ना, वो सब राइट्स, राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी केस, वो सब कुछ इसमें खुल गया। सो फॉर हमारे लिए लिबर्टी एंड फ्रीडम आर सेम, कुछ भी आए वी हैव टू गो विद द सेम कॉनोटेशन। नाउ इसी केस से पहले तक क्या होता था, हमारी जुडिशरी सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शंस को चेक करती थी, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शंस को 1980 से पहले तक। क्यों जी, वाई? वंडरफुल। इवन टुडे इन डेट है ना, आज की डेट में भी आर्टिकल 21 क्या लिखता है, लास्ट टर्मिनोलॉजी, लास्ट 4 शब्द उसके क्या हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नाउ यहां तक हमारी जुडिशरी क्या करती थी, उसने सिर्फ वही प्रोसीजर देखना है जो लॉ ने एस्टैब्लिश कर दिया। मान लीजिए लॉ ने किसी को बोल दिया कि भाई टाडा वगैरह लगा के इसको पकड़ लो, तो पुलिस ने पकड़ा है या नहीं पकड़ा, पकड़ के राइट टू लाइफ उसकी इंश्योर करी है कि नहीं, लाइफ टू लाइफ मींस व्हाट, ओनली एब्सेंस ऑफ डेथ, जितना मर्जी टॉर्चर करो, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये प्रोसीजर करती रही, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अंडरस्टूड। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज कहां का होगा, ब्रिटेन का, यूएसए का, ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट। रिलेट करो, डोंट, वाई जापान, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट कहां करा, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के अंदर। इसी वजह से आई वाज टेलिंग यू, समझो उसको, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी में व्हाट इट कैन डू, ओनली चेक व्हाट, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, वही यहां तक कर रहा था वो, बिकॉज इट वाज फॉलोइंग द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ व्हिच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21। और यहां से हमने शिफ्ट मारा किस पे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे, व्हिच इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर व्हिच इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अंडरस्टूड, अब समझ में आई बात, द लॉजिकल लिंक बिटवीन देम। नाउ वी शिफ्टेड टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? हाँ बोल सकते हैं जी। और कीपिंग केयर ऑफ नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, नेचुरल, हाँ ये भी अच्छा है। हाँ जी, क्या यूज होता है जी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो उसका कॉन्सेप्ट है। वी कैन से अदर वर्ड, मैं समझाता हूं वो कैसे रिलेट कर सकते हैं उसको। देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। हाँ हाँ, वो जी जी, उसी चीज में जा रहे हैं, वंडरफुल, ट्रू।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जब ये बात आई तो बात ये था कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में व्हाट इज ड्यू ऑफ लॉ, लॉ का ड्यू क्या है। जैसे मान लीजिए अभी योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन यू, है ना, आपका ड्यू क्या है, पेपर क्लियर करके देना। व्हाट इज द ड्यू ऑफ लॉ, लॉ का ड्यू क्या है, लॉ क्यों लेके आए थे, फॉर जस्टिस टू प्रिवेल, सो द ड्यू ऑफ लॉ इज जस्टिस। सो जुडिशरी सेड दैट लेजिस्लेचर, you by bringing unjust laws cannot interfere with the due process of law। ठीक है कि भाई लॉ का ड्यू तो जस्टिस है एंड आप लॉ को ही अनजस्ट लेके आ रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, तो हेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम जुडिशरी सेड दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर आल्सो गोइंग टू चेक द विजडम ऑफ योर लॉ, नॉट ओनली योर एग्जीक्यूटिव एक्शंस बट नाउ वी विल आल्सो चेक व्हाट इज द विजडम ऑफ योर लॉ, कि भाई किस तरह का कानून बनाया है आपने। So from that point of time, with according to the principle of due process of law, judiciary got the power to even question the legislative actions। उससे पहले सिर्फ क्या था, executive actions। Am I very clear with this? कोई भी डाउट? पक्का? I was explaining यार, मुझे ऐसे याद। Can't come up with unjust law। हाँ, you can't come up with unjust laws। We'll also now check the wisdom of the law, कि भाई हम legislative action भी चेक करेंगे, क्योंकि पहले क्या सिर्फ चेक हो रहा था executive action, but executive action was based on what? कैसे चेक कर रहे थे कि भाई जो पार्लियामेंट ने लॉ बना के दे दिया कि एग्जीक्यूटिव क्या उसके तहत चल रहा है क्या, बस उतना ही चेक करेंगे। बट अब पार्लियामेंट ने कैसा लॉ बना के दिया, इसको भी चेक करेंगे, बिकॉज इन द एंड व्हाट इज ड्यू ऑफ लॉ, जस्टिस। ठीक है, चलिए जी। आर्टिकल 19 और 21 दोनों को तो कंपेयर करना चाहिए था, जैसे कि आर्टिकल 21 से अपन ट्रैवल टू अब्रॉड जी, बट आर्टिकल 91 सब प्लस सी सेज कि यू हैव टू ट्रैवल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो देता है। तो वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट व्हेन वी आर डिस्कसिंग फंडामेंटल राइट्स। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ फ्रीडम एंड लिबर्टी आर सेम, बिकॉज टुडेस टॉपिक इज सेलिएंट फीचर्स नॉट फंडामेंटल राइट्स। विल डिवॉल्व इनटू दैट जब एफआर आएगा, फिर तो सारी पॉलिटी चल जाएगी यहाँ से। ठीक है, चलिए वो इंटरनल डिफरेंस है कि आर्टिकल 21 कितना मूवमेंट कंट्रोल कर, जैसे 19(1)(c स्टैंड्स फॉर राइट टू मूवमेंट, कहां मूव कर सकते हो, दैट इज फ्रीडम। उसमें फ्रीडम और लिबर्टी का कोई चक्कर नहीं, इट कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, नो प्रॉब्लम इन दैट। आज आर्टिकल उसको 19 को अमेंड करके राइट टू लिबर्टी दे दे, नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए जी। जैसे मान लीजिए यूएपी है अपने पास, किसी को भी उठा के आप अगर इसमें अगर अपन जुडिशरी में अगर अपन को जाना पड़े तो क्या जुडिशरी एक्शन लेता है कि जो प्रोसेस अपना यूएपीए का केस फाइल हो सकता है, बट देखो फॉर नेशनल सिक्योरिटी हमें लॉ तो चाहिए ही चाहिए, लॉ इज नॉट रॉन्ग। अभी लॉ के अंडर आके एग्जीक्यूटिव एक्शन सही से हो रहा है नहीं हो रहा, वो जुडिशरी चेक करेगा, लॉ इज फाइन। नहीं तो यूएपी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके रद्द कर देता, यूएपी इज स्टिल देयर टिल टाइम, है ना। यूएपी रद्द नहीं हुआ, लेजिस्लेटिव एक्शन इज करेक्ट, बट इज लेजिस्लेटिव एक्शन इन जो एग्जीक्यूटिव एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लेजिस्लेटिव एक्शन या नहीं, वो जुडिशरी चेक करता है केस टू केस बेसिस के ऊपर। कितने लोग हैं जिनको यूएपी के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा, अरेस्ट करा गया, जुडिशरी ने बोला इनको छोड़ो, दैट वाज व्हाट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चलिए थर्ड, तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी चीजें अपने पार्लियामेंट के साथ रिलेटेड हैं याद रखिएगा वो ब्रिटेन के साथ है। ठीक है, लेट्स कम, फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, ब्रिटेन। सेकंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यस। आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स, नहीं, ये कहां से लिए, लिख लो, कनाडा, कनाडा। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जहां से आपको कंफ्यूजन हुई है, वो क्या था, जीओआई 1935 ने रेजिडुअल पावर्स किसको दी थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, वो क्वेश्चन है जो आपको याद है। ठीक है, दिस इज कि हमने एज सच रेजिडुअल पावर कहां से ली, ये रेजिडुअल पावर कौन सी मेंशन कर रहा है वैसे, शेड्यूल 7 के बाहर जो पावर रह जाएंगी रेजिडुअल पावर्स, हाँ, जो किसी में नहीं। जी जी जी। उसके बाद द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज और हर रोल। ठीक है, यहाँ पे ना एक चीज लिखना, अगर एमसीक्यू के लिए आ जाए तो आप ब्रिटेन ही टिक करना, लेकिन इसका एक डिस्प्यूट है जिसकी वजह से मेंस में क्वेश्चन बनता है, वो जिस दिन स्पीकर करेंगे तो विल डू। हाँ, वो वाली चीज तो उन्होंने अमेरिका से कॉपी कर ली, एक चीज ब्रिटेन से कॉपी कर ली, इसी वजह से स्पीकर में कॉन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है जी, चलो, तो इसमें लिख लेना, वी हैव टू रेफर यूएस कनेक्ट,
बस इतना लिख लो, विल अंडरस्टैंड देयर जब स्पीकर का टॉपिक होगा जिस दिन, क्योंकि स्पीकर के ऑफिस में जितने भी डिस्प्यूट हैं, है ना, तो एंटी डिफेक्शन वाला स्पीकर का इन्होंने पोस्ट जो एंटी डिफेक्शन था वो ब्रिटेन से ले लिया, रोल स्पीकर का यूएस वाला है, लेकिन यूएस में स्पीकर के पास एंटी डिफेक्शन का पावर नहीं है। तो दिस डिबेट विल डिस्कस, बट अभी के लिए जस्ट दिमाग में होना चाहिए कि भाई स्पीकर के साथ ये डिबेट भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, एक चीज और समझ लो थोड़ी सी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडियोलॉजी क्या था जी? लिमिटेड गवर्नमेंट एंड सेकंड वाज, शब्द ही बताने जो मैंने कराया उतना ही, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इतना था ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टैंड्स फॉर रूल ऑफ लॉ, एंड रूल ऑफ लॉ का मतलब है जी लिमिटेड गवर्नमेंट। कैन लिमिटेड गवर्नमेंट बी देयर वेयर पार्लियामेंट इज सॉवरेन? यस, कैसे? No, sir. नहीं हो सकता। Parliament is government only, no? Where Parliament is sovereign, there cannot be limited government, because Parliament है ही sovereign, limit किसको करोगे आप, ठीक है जी। Now the question comes, which was the only thing which was limiting the government? Fundamental rights. If I make a statement today that people in Britain do not got fundamental rights, yes or no? गलत? It is correct technically. People in Britain do not got fundamental rights. अगर फंडामेंटल राइट्स लोगों को दे दी तो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी कब हो जाएगी? दिस वाज देयर मेन रीजन दे वांटेड टू एग्जिट फ्रॉम ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट इसी वजह से कराना चाह रहे थे। इन ब्रिटेन व्हेन इट गॉट पार्ट ऑफ ईयू, हु वाज मेकिंग द डिसीजंस? ईयू एज अ होल बॉडी, इट हैज टू बी इन सिंक विद देम, बट दे डोंट वांट टू बी देयर पार्ट। व्हाई? बिकॉज़ देयर पार्लियामेंट्स सॉवरेनिटी वाज गेटिंग इम्पीच्ड, वन ऑफ द मेन रीजन। सो एक चीज और याद रखना, ब्रिटेन में पीपल डू नॉट गॉट अ फर, they just have legal rights. If I am going into EU, जैसे हमने टारगेट 125 में हमने आप कब ज्वाइन करा था? नहीं करे थे ये चीज। द डे वी तो एक कॉन्सेप्ट होता है अपना एफटीएस वगैरह का, एफटीए से पीटीए और एफटीए देन सीका सीपा चलता रहता है, इकोनॉमिक्स यूनियन देन इकोनॉमिक्स ईयू बन जाता है ना। तो फाइनली जब भी ईयू बनता है तो उनका क्या होता है, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक लेवल पे वो टोटली सिंक कर जाते हैं, ठीक है। देन देयर पॉलिसीज इंडिविजुअली भी चलेंगी, दैट इंडिया कैन हैव गुड रिलेशंस विद जर्मनी, but India can have bad relations with UK. But if EU is going in sync with any country, EU is saying that I don't have any good relations with this, Britain cannot go against, which was hampering the sovereignty of Parliament. That's why one of the main reason of Brexit was कि भाई ब्रिटेन को अपनी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी चाहिए थी, ठीक है। तो इसको इससे भी रिलेट कर लेना, पीपल इन ब्रिटेन डू नॉट गॉट फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब तो ये उसके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही खत्म हो गया, क्योंकि एक पार्ट तो वो है किसके यहाँ? ये यूके के यहाँ, तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही खत्म हो गया ना, क्योंकि देखो ब्रिटेन ना अपने आप को, यू विल नेवर सी कि भाई ब्रिटेन इज कॉलिंग इटसेल्फ अ लिबरल डेमोक्रेसी, कभी नहीं बोलता अपने आप को। यू विल सी दैट ब्रिटेन मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ लिबरल डेमोक्रेसी। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। ब्रिटेन है क्या? मोनार्की थी वो, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, किंग कैन नॉट लूज हिज पावर्स, और किंग के रूप में भी पार्लियामेंट है, सो उनका वैसा ही चलता है। चलिए जी, मूविंग, इसका आंसर इज 7th इज लॉ मेकिंग प्रोसीजर। हाँ, ये भी ब्रिटेन से, क्योंकि पार्लियामेंट अगर वहां से है तो लॉ कहां पे बनता है? पार्लियामेंट में, ठीक है जी। सो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट, ओनली 5 आर करेक्ट। चलिए, consider the following statements. The Constituent Assembly adopted the elephant as its symbol. Yes, ठीक है। The elephant with its religious importance to Hindus was chosen as the symbol to pacify the extremist sections of the Constituent Assembly. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं थी। कहां से गेस मार सकते थे इसका? बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, वी आर सेक्युलर वन, वी वोंट बी एसोसिएटिंग एनीवन विद एनी एक्सट्रीमिस्ट पैसिफिक ग्रुप, ठीक है। इसका ना वो एलिफेंट इज कंसिडर्ड टू बी एनिमल व्हिच हैज स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड विजडम। 3 शब्द दिए जाते हैं एलिफेंट को, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड विजडम, जिसकी वजह से दे बिलीव्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम स्ट्रेंथ विल बी स्ट्रांग, इट विल बी स्टेबल आल्सो, एंड इट विल हैव गाइज फुल ऑफ विजडम। नहीं 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 नहीं, कोई रिलेशन नहीं, यहाँ ये मत करना। 3 ही शब्द हैं बस, 3 शब्द ऑफिशियली रिटन है, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड विजडम। कहां पे रिटन है? एनसीईआरटी में, बस याद रखना। कोई ऐसा मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है जी। कौन से वाले? क्या सॉल्व करना है इसमें? पता है तो पता है।
second is wrong, right? स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग जी. Okay. How can we say that statement 1 and statement 2 they are connected or not connected kind of thing? Like is it the correct explanation? नहीं 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 नहीं, अगर स्टेटमेंट 2 करेक्ट आता है तभी हमने कनेक्शन एक्सप्लोर करना है. सर उसके बीच में बिगाड़ लगाने से भी पता चलता है. किसमें जी? स्टेटमेंट जैसे आपका खत्म हो रहा है. जी 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 Constituent Assembly adopted the elephant as its symbol. जी जी जी. इसके बाद अपन को अपनी तरफ से बिगाड़ लगाना ही चाहिए सस्पेंस रीजन का. हाँ ये भी एक रीजन. पता चल जाएगा. जी जी. नहीं नहीं उनका, हाँ ये मैं आपका समझ गया, वेरी गुड जो उन्होंने बोला, अच्छा है. बट द थिंग इज उनका ये कंसर्न है कि क्या ये कनेक्शन तो नहीं एक्सप्लोर करना कि दोनों आपस में मिल रही हैं कहीं, चाहे वो सही है या गलत है. हाँ नहीं, अगर म्यूचुअली वो एक्सक्लूसिव है तो वो गलत है. वो इंडिविजुअली करेक्ट होगी तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर बोथ करेक्ट. ठीक है, तो अगर नहीं होंगी तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 का कोई रिलेशन नहीं है. हाँ ये भी उनका आइडिया अच्छा है. व्हाट्स योर नेम? विवेक. हाँ विवेक का आइडिया अच्छा है, बिकॉज लगा के देख लो. वेरी गुड. क्या? हाँ वो भी आया था, वो इस वजह से आया था अपना पार्लियामेंट के बाहर वो कैपिटल जो स्टैचू लगाया. हाँ वो भी एक पॉइंट नोट करो, यहाँ पे ही अपन आर्ट एंड कल्चर में कवर करेंगे वो तो, लेकिन यहाँ पे उसका एक लिंकेज बना के रख लो कि आई हैव रिटन हियर. हाँ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सिंबल, आप भी ऐसे ही लिख लो. मुझे करवाना था बट वील नॉट डू हियर, विल डू इन आर्ट एंड कल्चर. ठीक है जी, चलिए. चलो अगला, ये सही होना चाहिए अभी. ठीक है, हमने कर लिया टॉपिक. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. पहली, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज द लिमिटेशन ऑन बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस. हाँ जी. But procedure established by law is only the limitation on legislative actions. हाँ उल्टा लिखा हुआ है. ठीक है, basically it is opposite. Due process of law can also be equated with the concept of natural justice. Yes, very true. इसको सेकंड पॉइंट को हाईलाइट करके लिख लो. क्यों? I'll tell you. जब हम ये बात करते हैं ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, तो वी आर डिसाइडिंग व्हाट इज ड्यू ऑफ लॉ, जस्टिस. ठीक है, लेकिन वो लॉ का ड्यू दिला कौन रहा है? Who is judging here? The judge. And वो सही है या नहीं? Who will tell? Judge will tell. Judge will tell on the basis of his conscious. And conscious is related with soul. Conscious उसकी soul ही तो है, उसको अंदर से क्या लग रहा है? That's why it is related to the concept of natural justice. ये बात याद रखना. जी. कैसे? हाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जुडिशरी नहीं फॉलो कर पाएगा. लॉ मेकिंग तो ये लेजिस्लेचर की बात चल रही है, ये जुडिशरी तो इनमें चेकर है. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मत अप्लाई करो. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरेटिकल टर्म्स है, दे ओनली रेफर टू लॉ, कि भाई जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है उनका एग्जीक्यूटिव एंड ये एक्शन चेक करेंगे. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ओनली एग्जीक्यूटिव, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों कर सकता है. हाँ लेजिस्लेटिव ऑल्सो, एग्जीक्यूटिव ऑल्सो. चलो यार इसको ना प्लीज माय रिक्वेस्ट, 5th क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2 3-4 बार स्टार मार्क कर लीजिए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इस साल का क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट फंडामेंटल राइट्स विद इज, जो इस साल का क्वेश्चन था. आई टॉट यू पीपल लास्ट ईयर ऑल्सो that fundamental rights, human rights and natural rights, can I say they are all same? Yes. यही क्वेश्चन था इस साल का, जहां पे सब आंसर कीज कंफ्यूज थे. They are natural rights. Why? Because what is natural rights? Which you have by the virtue of being human. What are human rights? Since you are human. Now what are fundamental rights? Which are fundamental to your existence. और exist कब कर सकते हो? When you have got all those rights. यहीं से एक और concept. If UPSC puts a statement that Constitution gives you fundamental rights, no. Constitution recognizes your fundamental rights. You have fundamental rights by the virtue of being human. Rights हैं, it is just recognizing it. ठीक है, Constitution recognizes your FR, not gives you FR. This is a very wrong statement. याद रखना इन छोटी छोटी कीवर्ड्स को. चलिए चलो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6. इसका आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. ठीक है जी,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रीटेड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। ये लिविंग डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट कहां से है? हाँ जी जी, अमेंडमेंट जो करते हैं। एंड यहाँ पे 2 बातें याद रख लेना, हाँ ये भी बात याद रखना, इनफॉर्मली अपने दिमाग में रख लेना। मुझे नहीं लगता यूपीएससी फ्रेम करेगा, लेकिन अगर फ्रेम कर दिया तो यू शुड बी रेडी। ज्यादातर जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो इनफॉर्मल तरीके से होती हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल तरीका? एक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वाया फॉर्मल वे, जो पार्लियामेंट करता है। नहीं, एग्जीक्यूटिव एक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी, दिस इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। When judiciary is interpreting, it is doing what? It is amending the constitution only. ठीक है, और ज्यादातर किससे होता है? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। वो रोज आ जाती है कोई ना कोई नहीं। ठीक है, यहां से एक और चीज, we say India has which supremacy? Constitutional supremacy. Can I say India has judicial supremacy? No. Yes. Constitution supremacy and judicial supremacy for Indian constitution is same. Why? हाँ, जुडिशरी इंडिपेंडेंट करता है, और द पॉलिटिकल टर्म विच डी बासु जी यूज, कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट जजेस से, कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट जजेस से, दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी इज जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो बोल देंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हें तो मानना पड़ेगा, दैट्स व्हाई जजेस आर सुप्रीम। ठीक है जय, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कैसा रुतबा उनका? हाँ, इट इज हर्ड दैट दे आर, हाँ हाँ, चलिए जी। तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट का ये भी है। लिविंग डॉक्यूमेंट की जगह पे एक और शब्द यूपीएससी दे सकती है, ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट। तो वो भी याद रखना। ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट बेसिकली अपने सीजीआई गए थे, अभी जो प्रेजेंट सीजीआई है, दैट टाइम वाज नॉट सीजीआई। 2019 में ही वेंट टू लंदन, तो उनका कुछ स्पीच था वहां, देयर ही सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट। ठीक है, व्हाई ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट? व्हाई ट्रांसफॉर्मेटिव? ठीक है जी, और देखो जी 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 जी, ऑर्गेनिक। ठीक है, ये भी टर्म यूज हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनिक, ये थर्ड टर्म यूज हो सकती है। ठीक है, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग डॉक्यूमेंट, ये तीनों टर्म यूज हो सकती है, मीनिंग सेम ही है इसका। नाउ टेल मी व्हाई ही यूज्ड द टर्म ट्रांसफॉर्मेटिव, ये पता होना चाहिए। See, there were 2 countries which were getting independence at the same point of time. One was China, other was India. China started with a blank slate. Why? Because China ki independence was preceded by a revolution. A complete upthrust was there. While hamare mein what happened? We had a gradual shift of power. There was a gradual shift of power, rather peaceful. ठीक है, there was violence, no doubt in that, but comparatively peaceful. तो चाइना ने तो शुरू ही ब्लैंक स्लेट से करा था, रेवोल्यूशन प्रीसीडेड, बट व्हाट वी थॉट दैट हम लोग एक विश्वास रख के एक संविधान लेके आएंगे, दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल ट्रांसफॉर्म द इगैलिटेरियन सोसाइटी इनटू अ मॉडर्न वन, एंड इन दैट सॉर्ट आवर सीजीआई सेड दैट कि भाई जुडिशरी विद इट्स एफर्ट मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन अ रियली ट्रांसफॉर्मेटिव वन, which has converted the egalitarian society of 1950s to a highly modern one. ठीक है, so this is another reference of transformative constitution, you should know this. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। so the correct answer would be, अच्छा दूसरी लाइन तो पढ़ी नहीं हमने। In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of liberty, justice and equality on existing as well as new issues. हाँ ठीक है, जो पॉजिटिव जो नहीं पढ़ा, अगर वो पॉजिटिव लग रहा है कि भाई कुछ अच्छा ही लेके आएगी, तो दिस इज अ टिप फॉर प्रीलिम, वो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, यूपीएससी इनमें कंफ्यूज नहीं करता। सो द करेक्ट आंसर वुड बी स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बट हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन। चलिए, ऑलवेज नहीं नहीं, ऐसे शब्दों पे ज्यादा फोकस नहीं करना, जो मार्केट में चलता है ना, एक्सट्रीम आ गया तो वो गलत ही होगा, नहीं वो नहीं है, ओनली ये होता है, ओनली। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन इज बी, इट इज नॉट करेक्ट, वो रिलेटेड ही नहीं है कोई, वो लिविंग है, वो डेमोक्रेसी है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। all democratic constitutions are likely to have a all democratic countries are likely to have a constitution.
यस, ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है आपका क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 3 का। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम बात पहले कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहां का फीचर होगा, वहीं का ही। और यहां इससे उस बात से रिलेट कर लो कि कंट्री चाहे कोई भी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, सेकंड, ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, नहीं ये नहीं है, ठीक है। सो 1 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, हाउ मेनी ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो आर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए जी। ओनली फेडरलिज्म बताओ, है, ठीक है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, नहीं, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इज अ फीचर ऑफ यूएसए, हमारे यहां पे नहीं है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इवन, हाँ, डिवीजन ऑफ पावर एंड सेपरेशन इज डिफरेंट। We have checks and balances. That's why there is not strict separation. वहां पे भी चेक्स एंड बैलेंसेस है। देखो, स्ट्रिक्ट सेपरेशन का काम है क्या? वंडरफुल, मतलब लेजिस्लेचर है वो कानून ही बनाएगा, एग्जीक्यूटिव है तो वो एग्जीक्यूट ही करेगा। बट क्लीशे एग्जांपल, आवर मिनिस्टर्स आर व्हाट? एमपीज एंड मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, काम क्या हो रहा है? सो सेपरेशन ऑफ पावर है, जब वो अपना काम मिनिस्टर वाला करेंगे, मिनिस्टर वाला ही करेंगे, बट वो बंदा एमपी का काम भी कर सकता है। सो देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। स्ट्रिक्ट सेपरेशन इज फॉलोड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, याद रखना। एक और एग्जांपल, आर्टिकल नंबर 49, व्हाट डज इट सेज? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 50 है वो, हाँ सॉरी 50 डीपीएसपी में, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। क्यों करना है? बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन सिलोस, पर एक दूसरे का काम भी कर रहे हैं। तो इंडिया हैज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स, नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों को मैंने बोल दिया भाई तुम अपना अपना काम करो, लेकिन एक दूसरे को अगर जरूरत पड़े तो हेल्प करते रहना बीच में। दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, बट हेल्पिंग ईच अदर। बट इफ इट इज स्ट्रिक्ट, तुम अपना करोगे वो अपना करेगा, यू विल नॉट इंटरफेयर, दिस इज यूएस। चलिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यस। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, नो। फंडामेंटल राइट्स, yes. Secularism, yes. Wonderful. So answer would be option number B. All 4 items are correct. जी मैम। Concept we were discussing strict separation of power. So, उसमें is the word double membership is used for this? Like we don't have double membership. नहीं मैम, डबल मेंबरशिप वाला नहीं, क्योंकि डबल मेंबरशिप अगर होगी भी, सो दैट मींस कि भाई बंदा को 2 लेजिस्लेचर हाउसेस में मेंबरशिप मिल रही है। I'm asking in Lakshmi Kaur is given कि double membership is for the ministers have to be elected to any of the parties within 6 months. That for that double membership is used. So I'm asking that is it literally used for that? मैंने डबल मेंबरशिप लक्ष्मीकांत में पता नहीं, आई विल रीड अबाउट इट। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट कि भाई इफ यू आर इलेक्टेड टू द अदर हाउस, वो डबल मेंबरशिप। नहीं मैम, वो तो देखो, आई एम व्हाट, आई एम एन एमपी, आई एम इन लोकसभा, आई माइट गेट इलेक्टेड राज्यसभा। I know this concept. जी। I'm asking that this particular term is only restricted for this thing only कि जो 6 महीने के अंदर उसको बनना पड़ेगा किसी भी पार्टी में इलेक्ट होना उसका मतलब ये है कि वो सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। हाँ, व्हाट इज योर क्वेश्चन फिर से? सर डबल मेंबरशिप लाइक इज इट उसका, जैसे कि यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे में क्या है, जो लेजिस्लेचर्स है दे आर आल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे डबल मेंबरशिप ये टर्म हम यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं मैम, ये नहीं है, डबल मेंबरशिप नहीं होता। नहीं, वी डू नॉट हैव अ कांसेप्ट ऑफ डबल मेंबरशिप। जी जी, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे तो अगर किसी के पास होती भी है तो पर्टिकुलर टाइम लिमिट इज गिवन, जो भी हाउस का रुतबा बड़ा होगा अगर वो नहीं करता उसका सीट वहां से खाली कर दिया जाएगा। वी डोंट हैव अ कांसेप्ट ऑफ डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप As a legislator or executive? talking about overlapping of Minister and if we say that कि भाई a particular minister is also an MP, so he double membership? नहीं नहीं, एक ही सीट है। मेंबरशिप का मतलब है नंबर ऑफ सीट ही होल्ड्स। हाँ, मेंबरशिप से याद रखना, नंबर ऑफ सीट अ पर्सन इज होल्डिंग इज हिज मेंबरशिप, ठीक है। तो हम बोलते हैं डबल मेंबरशिप मतलब राज्यसभा में एक सीट लेके बैठा है, एक लोकसभा से लेके बैठा है। फॉर एन एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द फेमस पॉलिटिशियंस कंटेस्ट फ्रॉम 2 or 3 सीट्स। तो अगर तीनों से इलेक्ट हो गए, दे विल हैव डबल मेंबरशिप, और दोनों से हो गए तो डबल मेंबरशिप। उस केस में एक तो खाली करनी है, देन ओनली ही विल बी अलाउड। चलो लाएंगे तो विल सी। जी 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 जी, विल सी, अगर होगा तो देखेंगे यार।
चलिए, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 5, 6 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यार। A lottery is organized by the government of India. Lottery is organized by the government of state falls under list 1 of 7th schedule. Yes. List 1 is सेंटर लिस्ट। 3 चीजें हैं जो सिमिलर साउंडिंग है, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी। लॉटरी यूनियन के पास आएगा, बेटिंग, गैम्बलिंग और कसिनोज फॉर दैट मैटर ये स्टेट्स के पास आएगा, याद रखना। ठीक है, तीनों चीजें हैं जो अयाशी वाली हैं, उनमें से लॉटरी विल कम अंडर व्हाट, यूनियन लिस्ट। ठीक है, बेटिंग एंड गैम्बलिंग एंड कसिनोज विल कम अंडर स्टेट। कैसे याद रखोगे, गोवा ने अभी अभी लॉ पास करा था 2019 में विद रिस्पेक्ट टू कसिनोज। कुछ कसिनोज थे नहीं चल रहे थे, उनको बहाल करके गोवा ने पास करा था 19 में लॉ, तो वहां से कसिनोज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग याद रख लेना, क्योंकि बेटिंग एंड गैम्बलिंग टेक्स प्लेस इन कसिनोज, राइट। चलिए सेकंड चीज आ जाइए, सेंसस इज लिस्टेड अंडर लिस्ट ऑफ लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल। करेक्ट, ठीक है, यहां पे नोट करो, सेंसस वी विल डू इन सिटीजनशिप और यूटीज अगले टेस्ट में। दोनों में से मुझे याद करा देना कि सेंसस करना, यहां आज टच नहीं करेंगे सेंसस। ठीक है, चलिए, और डिलिमिटेशन कमीशन भी साथ में लिख लो, विल आल्सो कवर डिलिमिटेशन कमीशन देयर एंड देयर ओनली। चलिए जी, उसके बाद आ जाइए जी, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी इज लिस्टेड अंडर लिस्ट 3 ऑफ द 7th शेड्यूल। इसमें कंफ्यूज हुए ना? यस और नो बताओ जल्दी से। बिकॉज व्हाई यू आर टेकिंग दिस बैंकरप्सी एंड आईबीसी का कोड दिमाग में रख रहे हो कि भाई 2016 में कोड आया था, उसके अंदर तो एनआरटी ये सब डिसीजन ले रहा है। ठीक है, बट दिस इज नॉट विद रिलेटेड टू दैट कोड, कोड के साथ रिलेटेड नहीं है। दिस इज विद बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एज अ होल। हमारे पास सरफेसी भी है, दैट आल्सो डील्स विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। तो बेसिकली क्या था कि भाई सबसे पहला जो इंसॉल्वेंसी के लिए कोड था वो मद्रास में लाया गया था 1920 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे हम आजादी की तरफ बढ़े तो इन सबको कैंसिल कर दिया गया, सब लॉज को, और हमारे पास अपना इंसॉल्वेंसी का एक्ट था 1948 का, आई गेस ईयर आई डोंट रिमेंबर प्रिसाइजली कितने का था। वैसे ये जरूरत भी नहीं है याद रखने की, बिकॉज आईबीसी जब फॉर्म हुआ था हाँ ये लिख लो, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज पुट अंडर एंट्री नंबर 9 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज पुट अंडर एंट्री नंबर 9 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। व्हाई? क्योंकि सबसे पहला जो ये आए थे ना, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट्स नाम से आए थे, तो सबसे पहले हम कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में 1920 में लेके आए थे, तो तब ये एक्ट स्टेट वाइज ही चलते थे। अब क्या होने वाला है, वो स्टेट्स की पावर लेके सेंटर अपने आप को भी देना चाहता है, तो इस वजह से हमने यूनियन लिस्ट में नहीं रखा, कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया था। ठीक है, उसके बाद सिर्फ ये मत समझना कि भाई आईबीसी कोड इज द ओनली वन विच इज डीलिंग विद इट। 2016 से पहले ये रियलिटी नहीं थी, अभी है। आईबीसी एंड सरफेसी आर द ओनली 2। ठीक है, लेकिन उससे पहले वी हैव आरडीडीबी एक्ट, सीका एक्ट एक्सेट्रा, इन सबको 2016 में रिपील करके आईबीसी ले आए हम। तो पहले जो ये छोटे छोटे एक्ट थे, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर होती थी, तो इस वजह से इफ यू सी बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एज अ होल टॉपिक, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में अभी भी शेड्यूल 7 में। ठीक है, एंट्री नंबर 9 मैम, आर्टिकल 246, लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए सो क्या आंसर रहेगा जी इसका? ऑल, हाँ ओनली 3 आर करेक्ट, ओनली 3, ऑल आर, एक मिनट, लिस्ट 3 में है जी, हाँ है, हाँ ऑल आर करेक्ट यार, ऑल आर करेक्ट, सब करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट नंबर 1, the Indian constitution draws enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by the people who enjoyed immense public credibility. सही बात है? हाँ सही बात है। The Indian constitution was subjected to a full-fledged referendum where all people voted on the desirability of the constitution. नहीं, ऐसा रेफरेंडम कुछ नहीं हुआ था। क्यों नहीं रेफरेंडम हुआ था जी? हाँ ये भी ठीक है, बताइए फिर सोचो एक बार। अरे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है यार,
वी आर नॉट अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो बोल रहे हैं प्लेबिसाइट कराओ, सुप्रीम कोर्ट का ये वी आर डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों करवाएं और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों करवाएं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना वी नीड टू नोट डाउन फ्यू थिंग्स, एक सेकेंड। हाँ जी, चलिए, मेक अ हेडिंग इलेक्शन सिस्टम ऑफ दैट, इलेक्शन सिस्टम इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। चलो, सो टोटल मेंबर्स वी हैव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज 389, ठीक है। इन सब ना इस साल इन सब के फैक्चुअल जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिछले साल तक आई आल्सो यूज्ड टू रिकमेंड कि भाई इनका फैक्चुअल स्टफ ज्यादा ना करना, पर इस साल के लिए वी आर गोइंग टू डू। उसका रीजन क्या है, इस बार उसने डेट्स पूछ ली थी, ठीक है, कि भाई 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एट दिस एंड दैट, वो था क्वेश्चन इस बार, हाँ ऐसे कुछ था। तो इसमें लिखो 389 मेंबर्स वर देयर। इसके बीच में से डिवीजन ये थी कि भाई 296 लोग कहां से आए थे, प्रोविंसेस से, एंड रह कितने गए पीछे, 92 और 93, हाँ 93 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। इनकी डिवीजन आगे थी 292 एंड 4, 292 एंड 4, 292 वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, एंड 4 वर फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। चलो 296 का डिवीजन लिखो, 208 प्लस 73, 208 प्लस 73 प्लस 15, तो 208 लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इसका डिवीजन भाई, इसका डिवीजन, ठीक है। 208 प्लस 73 प्लस 15, तो 208 लोग के ऊपर लिख लो आईएनसी छोटा छोटा करके, 70 वाले फिगर के ऊपर लिख लो मुस्लिम लीग, 73 मुस्लिम लीग, ठीक है। तो यहां से अगर क्वेश्चन बने कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर रिप्रेजेंटिंग आईएनसी, यस, ठीक है। चलो उसके बाद 15 मिक्स था, इट वाज अ मिक्स लॉट, नॉट फ्रॉम एनीवन, ठीक है। उसके बाद यहीं पे ही लिख लो कंपैरिजन करके 299 मेंबर्स, ये क्या थे जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आके बैठे थे, ये इलेक्टेड थे, ये आके बैठे थे, क्यों, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, बाद निकल गए थे बाकी के, राइट। सो 299 वर देयर, 299 में राइट डाउन डिवीजन 229 फ्रॉम प्रोविंसेस एंड 70 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, 70 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, 229 एंड 70 का डिवीजन है मैम, 229 एंड 70 का डिवीजन है। चलो एक खाली पेज खोलो, इस चैप्टर की टाइमलाइन बनाओ। लक्ष्मीकांत जी में अच्छा दिया गया है कंटेंट, बट द थिंग इज आपको पहली टाइमलाइन नहीं क्लियर होती तो चीजें रटने में मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो विल क्लियर आउट सम थिंग्स। लिखो 1922 सबसे पहला ईयर 1922, टाइमलाइन बनाते रहना बस एक खाली पन्ने पे। ईयर इज 1922। रवि पानी दे दीजिए, मुझे भी दे दिया था, हाँ ठीक है। 1922 महात्मा गांधी डिमांडेड इंडियाज पॉलिटिकल फ्रीडम। पहला साल है 1922, महात्मा गांधी जी ने डिमांड करी थी। 1928 लिखो नेहरू रिपोर्ट, 1922 महात्मा गांधी डिमांडेड इंडियाज पॉलिटिकल फ्रीडम, इंडियाज पॉलिटिकल फ्रीडम। 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1928 नेहरू रिपोर्ट। 1934 आइडिया, किसने दिया था 1934 में आइडिया, एमएन रॉय। हु वाज एमएन रॉय हिस्टोरिकली, हाँ जी, फाउंडर ऑफ सीपीआई, वाज फाउंडर ऑफ सीपीआई। 1935 में आईएनसी डिमांडेड इट, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड कर ली थी। उसके बाद आता है 3 साल बाद 1938, नेहरू ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, हाँ जी क्या बोल रहे हो जी, अरे वी आर ऑन 38,
चलिए 1938 लिखो 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 1938 कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फ्रेम्ड, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फ्रेम्ड विदाउट, इसको अंडरलाइन कर लो, विदाउट को, विदाउट को अंडरलाइन, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेकंड वर्ड अंडरलाइन करो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्टेड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्टेड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल नहीं था यहां पे, ठीक है, दो ही है एडल्ट फ्रेंचाइज। किसमें? आई डोंट थिंक यार, देख लेंगे हिस्ट्री में, देख लेंगे, अभी के लिए इतना ही लिखो। उसके बाद लिखो 1940 अगस्त ऑफर, 1940 अगस्त ऑफर, एंड लिख लो 38 डिमांड एक्सेप्टेड, जो 38 वाली डिमांड थी वो अगस्त ऑफर ने एक्सेप्ट कर ली थी, 1938 वाली डिमांड, 38 डिमांड एक्सेप्टेड। उसके बाद कौन सा ईयर आएगा जी? 42, क्या हुआ था 42 में? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन क्या करा? क्रिप्स मिशन ने क्या बोला? हाँ वंडरफुल, वो कहता कि भाई हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे, लेकिन कब? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ड्राफ्ट प्रपोजल बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो मुस्लिम लीग ने क्या बोला था इस टाइम पे? रिजेक्टेड इट, रिजेक्टेड इट बाय, बिकॉज उसको दो सेपरेट असेंबलीज चाहिए थी, वांटेड टू एमएल, लिख लो शॉर्ट फॉर्म में लिखो, एमएल रिजेक्टेड वांटेड टू सीए, एमएल रिजेक्टेड वांटेड टू सीए। चलो उसके बाद लिखो 1946 ईयर, 1946 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, स्टार मार्क कर लो, 24 मार्च, इसमें डेट वाइज चलेंगे, सबसे पहली डेट 1946 में आती है 24 मार्च, कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड टू सीए, कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, बट समहाउ इट सेटिस्फाइड मुस्लिम लीग, राइट। तो जिसकी वजह से अगले महीने कौन से आते हैं 46 में, इंपॉर्टेंट, तो 46 की जुलाई से लेके अगस्त तक इलेक्शंस हुए थे, 1946 में जुलाई से लेके अगस्त तक वी हैव इलेक्शंस। हाँ जी, एमएल मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन किसी तरह से मना लिया था, हाँ ठीक है। तो जुलाई से लेके अगस्त तक क्या हुए? इलेक्शंस किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एंड फाइनली नवंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, ठीक है। तो यहां से याद रखना, नवंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। तो अभी तक हमने नवंबर में 46 में 3 महीने करे, 24 मार्च कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन, उसके बाद अपना जुलाई से लेकर अगस्त तक इलेक्शंस, नवंबर में गठन हो गया। नवंबर महीने और दिसंबर महीने में हमें डेट्स करनी है। सबसे पहली डेट आती है 9 दिसंबर की, 9 दिसंबर, क्या है जी 9 दिसंबर? फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग। तो पहली बार 9 दिसंबर को मिले थे 1946 में, और इसी दिन उन्होंने क्या करा था? टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा, इसी दिन टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद एक दिन की छुट्टी ली उन्होंने, हाँ वंडरफुल, 11 को फिर आ गए। तो 11 को आके क्या किया उन्होंने? प्रेसिडेंट बना दिया राजेंद्र प्रसाद, बोले आप तो टेम्परेरी थे। और सच्चिदानंद सिन्हा जी से एक चीज और याद रख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रैक्टिस? फ्रेंच प्रैक्टिस, ठीक है। तो 11 को वापस आके इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद, एक दिन फिर छुट्टी पे चले गए, 13 को फिर से वापस आए, फिर क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, हाँ ओल्डेस्ट मेंबर, फ्रेंच प्रैक्टिस। हाँ जी, देखो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया, एक दिन छुट्टी लेके फिर आए, राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया, एक दिन छुट्टी लेके फिर आए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे दी। 1946 तक की कहानी खत्म हो गई। वी आर एंटरिंग टू द ईयर 1947, ठीक है। तो 1947 में पहला महीना है 22 जनवरी का, और पहला डेट है जो 22 जनवरी का। क्या करा उस दिन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज यूनानिमसली एक्सेप्टेड 22 जनवरी को 1947 को। अच्छा, ये दिमाग में खाना बना लो, ये सब कुछ आजादी से पहले हो रहा है, एवरीथिंग इज प्री इंडिपेंडेंस ओनली, अभी तक आजादी से पहले आए नहीं है। कोई कंफ्यूजन यही होती है कि भाई आजादी से बाद होगा, कब होगा। सो अभी तक स्टिल वी आर प्री इंडिपेंडेंट ओनली, ठीक है। 22 जनवरी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन यूनानिमसली अडॉप्टेड, ये लिखो यूनानिमसली अडॉप्टेड, क्योंकि अगर प्री में क्वेश्चन पूछ लिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तुम्हें पता है कि भाई हाँ अडॉप्टेड, उसने यूनानिमसली पूछ लिया, तुम लोग बोलोगे यार ये कंफ्यूजन के लिए तो नहीं दिया कहीं, तो यूनानिमसली अडॉप्टेड।
अगली डेट आती है हमारे पास 3 जून की, 3rd of June। 3rd of June को क्या हुआ था जी? माउंट बैटन प्लान, माउंट बैटन प्लान माउंट बैटन प्लान। उसके बाद जी कौन सी डेट है? 22 जुलाई, नहीं 18 जुलाई पहले आएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था इसमें 18 जुलाई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, पर असेंबली के पास कोई लीगल बैकिंग तो थी नहीं कुछ बनाने की। आजादी के बाद कैसे कुछ करता वो, तो लीगल बैकिंग उसको देने के लिए पहले इंडिपेंडेंस एक्ट लेके आए हम 18 जुलाई को। ठीक है कि भाई संविधान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन तो गई है, लेकिन वो तो बनाने का प्लान था ना कैबिनेट मिशन वाला। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और भारत को फॉर्मली आजादी देनी है, तो इसकी पावर्स ट्रांसफर करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, मतलब जो भी माउंट बैटन प्लान में था उसको एक लीगल शेप देने के लिए हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लेके आए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या थी जी? हाँ 22 जुलाई, क्या करा 22 जुलाई को? हाँ आजादी का दिवस आ रहा है, झंडा लहराएंगे, तो 22 जुलाई को वी अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, और फिर 15 अगस्त को वी गॉट इंडिपेंडेंस। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त, 16 अगस्त। उसके बाद है जी अपना, जब हमें आजाद हो गए तो हमने 2 हफ्तों तक हम रुके, प्रिसाइजली 2 हफ्ते। 2 हफ्तों में कितने दिन होते हैं? 14 दिन। तो 15 अगस्त को आजाद हुए थे, 29 अगस्त को हमने क्या बनाया बताओ? ड्राफ्टिंग कमिटी। एग्जैक्टली 2 हफ्तों बाद। तो ऐसे हफ्ते याद रख लिया करो, दिन याद रख लिया करो, यू विल बेटर एबल टू रिमेंबर द डेट्स। तो 14 दिनों बाद एग्जैक्टली 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर चेयरमैन किसको रखा गया? बी आर अम्बेडकर जी को। अच्छा उसके बाद ना आप स्टैटिक के नोट्स आपके पास हैं अपने, वैसे ये मिल जाएंगे आपके उस पे अपलोड हो जाएंगे। इसमें ना एक चीज आई नेम द पर्सन जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, ठीक है, तो उसमें ना ज्यादातर नाम रिलीजियस हैं, तो ये देख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल पहला बी आर अम्बेडकर जी तो सबको याद ही रहेंगे। सेकंड नेम इज गोपाल स्वामी अयंगर, तो गोपाल इज अनदर नेम ऑफ कृष्ण, तो यहां से याद रख लेना, एक तो गोपाल हो गए, दूसरा कृष्ण स्वामी अय्यर वो खुद ही हैं, ठीक है। तीसरा इज मुंशी, के एम मुंशी, राइट। फिफ्थ इज योर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एंड देन अगेन गॉड नेम माधव राव, एंड लास्टली अगेन वी हैव टी कृष्णमाचारी। तो ये ऑलमोस्ट 2-3 नाम इनमें से याद रखने, बाकी एसोसिएट कर लेना भगवान के नाम के साथ ही है। मोहम्मद इज एसोसिएटेड, कृष्ण इज एसोसिएटेड, 2 कृष्ण हो गए, गोपाल इज एसोसिएटेड, एक मान लीजिए सब भगवानों ने अपना मुंशी रखा हुआ था, एंड देन वी हैव बी आर अम्बेडकर। तो कुछ इस तरह से याद कर लीजिएगा। ही वाज आई गेस वो अपने टी कृष्णमाचारी ने उनको खैतान को रिप्लेस करा था। आई रिमेंबर दिस कि मुंशी सिटिंग इन द इन हिज शॉप एंड उसने खैतान का पंखा लगाया, तो खराब हो गया, उन्होंने रिप्लेस कर दिया। यू कैन रिमेंबर, अपने निमोनिक्स बना लेना, रटने वाला प्योर काम है। मोहम्मद तो इसका पूरा नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है जी। चलिए हाँ खैतान जी की डेथ हो गई थी, मुंशी जी नहीं, इसने कृष्णमाचारी जी ने, टी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस करा था, एंड बीएल मित्तर ने रिजाइन कर दिया था, उनको माधव ने रिप्लेस किया था, ठीक है। बीएल मित्तर रिजाइन। चलिए अगला ईयर आ गया 1948। तो 1948 में अभी आपको क्या दिमाग में रखना है, 48 वाला साल है ना जो, वो सारे का सारा चलेगा ड्राफ्ट्स में, पहला ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा ड्राफ्ट, और 48 के बाद अगला साल आने वाला है कितना, कौन सा? 1949 वाला, व्हेन वी फाइनली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 साल तक अभी ड्राफ्टिंग वाला काम ही चलेगा, राइट। सबसे पहले लिखिए, फरवरी में पहला ड्राफ्ट इन्होंने रेडी कर दिया था। हाँ तो तकरीबन मतलब 5.5 महीने लगे थे। 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग का गठन हुआ था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी मिड में इन्होंने पहला ड्राफ्ट दे दिया था, 5.5 महीनों बाद, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड इज, जब पहला ड्राफ्ट प्रेजेंट करा तो उसके ऊपर विचार हुए, है ना, मत लिया गया, डिस्कशंस हुई, तो दूसरे ड्राफ्ट को कम से कम 8.5 महीने लग गए थे। अक्टूबर में जाके दूसरा ड्राफ्ट दिया, अक्टूबर में जाके दूसरा ड्राफ्ट दिया। उसके बाद सिर्फ 1 महीने, 8.5 महीने बने। उसके बाद अगला शुरू हो जाता है तीसरे ड्राफ्ट का काम, और अगले इसी नवंबर में, 48 की नवंबर में थर्ड ड्राफ्ट पेश कर दिया था। 48 की नवंबर में ही थर्ड ड्राफ्ट।
और थर्ड ड्राफ्ट का लिखो जो फिर रीडिंग चली थर्ड ड्राफ्ट की, वो इस नवंबर से लेके अगले साल की 17 अक्टूबर तक चली, 17 अक्टूबर 1949 तक रीडिंग चली। ठीक है, तो ये बन गया एक सेट ऑफ लाइन ड्राफ्ट का। अभी 1949 ईयर लिखो, उसमें क्या क्या हुआ था। 17 अक्टूबर 1949, मतलब कम से कम ये साल चला, एक साल चला, 1 साल 10-15 दिन। ठीक है, उसके बाद 1949 में सबसे पहले तो 1949 के मई महीने में हमने कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को क्या करा था, रेटिफाई। मई में हमने कॉमनवेल्थ को रेटिफाई कर दिया था। और फिर एक चीज याद रख लो, नवंबर के महीने में 3 रीडिंग्स हुई थी थर्ड ड्राफ्ट की। नवंबर के महीने में थर्ड रीडिंग कंप्लीट हो गई और 26 को वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। रीडिंग कंप्लीट हुई थी, आपने लिखवाया। देखो देखो देखो, सेकेंड रीडिंग वॉज कंप्लीटेड टिल 17th of October एंड थर्ड रीडिंग कंप्लीटेड इन नवंबर। ये रीडिंग नहीं पूछेगा, जस्ट रिमेंबर अक्टूबर नवंबर तक बन गया था। रीडिंग में इतना डेप्थ में नहीं जाएगा वो। नवंबर से जो चालू हुआ था पिछले साल 48 की नवंबर से चालू हुआ, अगले साल के अक्टूबर तक चला था वो रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, और फिर ये नवंबर में 49 नवंबर 26 वो आ गई जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा। जो फेमस डेट पढ़ते हैं 26 नवंबर 1949, वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए उसके बाद जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर को, ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला था, स्वराज को मद्देनजर रखते हुए हम विल वेट फॉर 2 months एंड देन व्हाट वी विल डू, 26 जनवरी को वी विल सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड वी विल एनफोर्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो लेकिन एनफोर्समेंट के लिए परेड वेड सब कुछ कराना था, तो इस वजह से इन्हीं 2 महीनों में जितने बाकी सिंबल्स रह गए वो सारे के सारे एक्सेप्ट करे गए थे। ठीक है, सो राइट डाउन द डेट्स। 24 जनवरी नेशनल सॉन्ग, 24 जनवरी नेशनल सॉन्ग प्लस नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग प्लस नेशनल एंथम प्लस फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए, जिस दिन हमारा संविधान कमेंस हो गया था, मतलब एनफोर्स हो गया था, उसी दिन हमने सबसे पहला काम क्या करा था, 2 एक्ट्स को रिपील करा था। कौन कौन से याद रखना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जीओआई एक्ट 1935, 47 और 35 को रिपील कर दिया था। सिर्फ एक चीज हमने कंटिन्यू करी थी, ये भी बहुत टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बनाती है इस पे, हाँ, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल वाला चीज। ठीक है, दिस वाज कंटिन्यूड, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल, इंडियन इंडिपेंडेंस 47 वाला, और उसके बाद जीओआई 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों को रिपील करा। एक ही चीज कंटिन्यू करी, क्यों, क्योंकि वो भी हमारे फेवर में थी। दैट बिल वाज स्टेटिंग एबोल्यूशन ऑफ प्रिवी काउंसिल। ठीक है जी, चलिए, और फिर हमने एक बात ये भी बोल दी थी कि भाई हमने अपना संविधान तो अडॉप्ट कर लिया है, 1950 तक का टाइम है, तो अगले 2 सालों के लिए जब तक हम लोग जनरल इलेक्शन नहीं कराते तब तक हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही रहेगी। तो अगर यूपीएससी ये भी पूछ ले कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इवन आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्ड द प्रोविजनल पार्लियामेंट, आंसर इज यस। ठीक है, इलेक्शंस करवाने में टाइम लगना था ना, अभी सिचुएशंस ठीक नहीं चल रही थी, तो वी नीड सम टाइम। इलेक्शन कमीशन आना था, अडॉप्ट करना था, ईवीएम्स वगैरह सब जगह जाना था, ईवीएम्स नहीं चलो बूथ वगैरह, ईवीएम तो बाद में आया। चलिए, उसके बाद इस चैप्टर में कमेटीज आप लोग खुद याद करना है, और उसमें बताने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिकली 3-4 मेन कमेटीज हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास थी, फंडामेंटल राइट्स किसके पास थी, और एक जो टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, स्टीयरिंग कमेटी किसके पास थी, है ना, राजेंद्र प्रसाद के साथ। हाउ विल यू रिमेंबर, हाँ, राष्ट्रपति स्टीयरिंग उनके हाथ में दिया था, भाई आप पकड़ के रखो, ही सिट्स हियर। तो ये वाली सीट से आगे बस का इधर से डायरेक्शन है, दे आर मूविंग। प्रिवी काउंसिल जी, ये इंट्रोड्यूस किया था, ये पहले से था, इसको हमने बोला इसको हम अबॉलिश नहीं कर रहे। 3 एक्ट चलते आ रहे थे, 2 को अबॉलिश कर दिया, 1 को रख लिया। ये हिस्ट्री में करेंगे, अभी टाइम लग जाएगा इस पे, आई विल टेल यू। अच्छा, इंपॉर्टेंट ना नाम नोट करो जिनके साथ एसोसिएटेड कमेटीज आपको याद रखनी है, इन्हीं में गेम घुमाता है प्रीवियस, मतलब आई एनालाइज्ड फ्रॉम 1993 के से। एक जेबी कृपलानी, इनके पास फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी थी।
ठीक है। दूसरा है अपने ये ठक्कर साहब थे, किधर गए, एवी ठक्कर, इनके पास वो असम के पार्शियली एक्सक्लूड एरियाज वाली कमेटी थी, एवी ठक्कर। कृपलानी जी के पास फंडामेंटल राइट्स कमेटी थी। हाँ जी, एबी ठक्कर के पास ये था, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन असम वाले सारे के सारे ठक्कर साहब के पास थे। ये आप लोग के लक्ष्मीकांत में लिखा है, मैं जस्ट नाम नोट करा देता हूं, विल नॉट वेस्ट टाइम, आप लोग वहां से जाके कर लीजिएगा। एंड एक लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास था। ठीक है, यूनियन वाज विद जवाहरलाल नेहरू एंड प्रोविंसेस का जिम्मेदारी किसको दिया गया था, वल्लभ भाई पटेल जी को, तो उनके पास ही था। ठीक है, चलिए उसके बाद एक चीज में और यूपीएससी कंफ्यूज आप भी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी कर रही हैं, 25 दिसंबर और 26 नवंबर में कंफ्यूज करा जा रहा है। ठीक है, 26 नवंबर किस लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, 25 दिसंबर इज गुड गवर्नेंस डे इन द मेमोरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, याद रखना है इसको। चलो और तो कुछ नहीं है इसमें। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द 8th schedule of the constitution. The Sitakant Mohapatra committee was formed to evolve a set of objective criteria for inclusion of more languages in the 8th schedule. सही स्टेटमेंट है, किसी को नहीं पता होगा, 2003 की कमेटी है, अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोल्ड करके इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, दैट्स वाई मैंने यहां से क्वेश्चन बनवा दिया। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये कमेटी, इसको बस यहीं पे हाईलाइट कर लो, ईयर वियर याद मत रखना, बस ये याद रख लेना 20 साल पुरानी है, 23 चल रहा है, 23 की कमेटी है ये। गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th schedule। हाँ, 8th schedule में क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, आई डोंट रिमेम्बर यार, कोई क्राइटेरिया, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे काम चलता है, देयर इज नो क्राइटेरिया एज सच। क्लासिकल लैंग्वेजेस का है, यू माइट बी कंफ्यूजिंग इट विद क्लासिकल लैंग्वेजेस, उनका क्राइटेरिया है कि भाई वो क्या वो करते हैं हम अभी। तीसरा है ऑल द क्लासिक, हाँ ये आ ही गया, ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर पार्ट ऑफ 8th schedule। यस, चलो क्या कोई नहीं, उल्टा एक्सचेंज हो गया, जिससे सही माना तो वो गलत, जिससे गलत माना तो वो सही हो गया। चलो मेक अ हेडिंग लैंग्वेजेस, तो आज लैंग्वेजेस अभी निपटा देंगे, 8th schedule में आ ही गया तो क्वेश्चन। हाँ जी, हैंडआउट्स मिलेंगे लेकिन मुझे लगता है डेमो के बाद देंगे। आई फील ऑल्सो द सेम, मैंने बनाया है बट आई मेड द हैंडआउट, बट दे विल बी गिविंग यू, आप लोगों को भी मिलेगा यार। चलिए, क्वेश्चन आई विल कीप ऑन आस्किंग यू, जवाब देते रहना, जो नहीं पता होगा वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अवर यूनियन क्या है, विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज, दोनों हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। संविधान क्या बोलता है, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला था हिंदी रहेगा बेसिकली अपना, हाँ जी जी, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट would be the official language and English will be continued till 1965। इंग्लिश को एक्सटेंड करने के लिए हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 पास कर दिया था, ये कहानी याद में रखना। ठीक है, मतलब जब देश आजाद हुआ था हमने बोला था हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, और साथ साथ क्योंककि तब ब्रिटिशर्स का राज था, इंग्लिश प्रेवलेंट थी ज्यादा, तो इंग्लिश भी 15 साल तक कंटिन्यू रहेगी। लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि भाई इंग्लिश को कंटिन्यू रहना चाहिए, तो जैसे ही 1965 का साल आ रहा था उससे 2 साल पहले हमने एक्ट पास कर दिया। ठीक है, 1963 में कि भाई इंग्लिश विल बी कंटिन्यूड, अंडरस्टूड। चलिए, सेकंड थिंग इसमें जो आपको याद रखनी है, यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 ने इंग्लिश की जो एक्सटेंशन थी वो कितने समय तक करी थी, हाँ इनडेफिनेटली।
10 साल में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि रिजर्वेशन का जो एक्सटेंशन है वो हर एक 10 साल बाद 10 साल के लिए होता है। तो लैंग्वेज में यूपीएससी 10 साल का कंफ्यूजन डाल सकती है, रिमेंबर, इनडेफिनेटली। चलिए, अच्छा, व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स? हाँ, स्टेट्स डिसाइड, बस पता यहां पे ये होना चाहिए, स्टेट्स खुद डिसाइड करती हैं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कोर्ट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। अभी 4 हो गई है, 4 को दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या जी? गुजराती को, उड़िया को, तमिल को। देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज इज समथिंग इन विच नो वन कैन रिजेक्ट, मतलब द ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स विल गो, कोर्ट कैन एक्सेप्ट इन गुजराती। जी, ठीक। चलिए, सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स जितने भी हैं अपने, इंग्लिश, उनका इंग्लिश है। साथ में लिखो, अदर लैंग्वेजेस कैन बी अलाउड। कैन अदर लैंग्वेजेस बी अलाउड इन कोर्ट्स? यस, हु विल अलाउ? हाँ, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, उनका सीजीआई का कोई रोल नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स विल अलाउ। जी सर, मैं समझ गया सर, 4 दिन पहले की न्यूज थी ये। जी जी जी, जी 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 जी, हाँ, वील सी, ये टॉपिक ना है अपना जुडिशरी में हमें कवर करना है, तो वील सी दैट डे जिसमें भी होगा। बट अभी के लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस याद रखो 8 शेड्यूल के हिसाब से कि भाई उनको परमिशन कौन देता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, क्या पार्लियामेंट ने कभी ऐसा, कोई आज तक की हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रोविजन बनाया है कि भाई हिंदी कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट्स? नेवर। तो इसको नेवर लिख लो, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ये भी मिल सकती है। नेवर, नेवर एवर पार्लियामेंट हैज मेड एनी लॉ। चलो, पिछले साल तक हम ये स्टेटमेंट करते थे कि भाई एट प्रेजेंट, हाँ, हिंदी लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज्ड इन कोर्ट्स। आज तक हम ये स्टेटमेंट करते थे कि भाई एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट हियर्स ओनली दोज पिटिशंस और अपील्स व्हिच आर देयर इन इंग्लिश। इस साल से वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, वो क्यों होगी जुडिशरी में देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं। चलो, उसके बाद वी हैव टू डू, चलो लिखो अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। कौन कौन सी अमेंडमेंट्स रिलेटेड है लैंग्वेजेस के साथ? अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, सबसे पहले लिखो 21st 1967, 21st 1967, कौन सी लैंग्वेज ऐड करी थी जी इसने? सिंधी, वंडरफुल। उसके बाद 71वीं 1992, 71st 1992, 3 लैंग्वेजेस थी, कोनकानी, मणिपुरी, नेपाली, कोनकानी, मणिपुरी एंड नेपाली। चलिए, देन 92nd 2003, तीसरी अमेंडमेंट लैंग्वेजेस के साथ रिलेटेड, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है जी? सेंथली, मैथिली, बोडो एंड डोंगरी, बोडो एंड डोंगरी, संथली, मैथिली, बोडो एंड डोंगरी, दीज वर द 4। चलिए, उसके बाद मुझे ये बताते रहो कि भाई कौन सी लैंग्वेज है स्केड्यूल में या नहीं, जो नहीं पता होगी नोट कर लेना, नहीं तो नहीं करना। संस्कृत, ओडिया तो पहले से था ना? विच अमेंडमेंट? नहीं यार, ओडिया, ओडिया was what information I have is ओडिया was added into classical languages in 2014। इससे तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं नहीं, आप कंफ्यूज मतलब दिमाग में नहीं चल रहा जी। पता नहीं यार, आई डोंट नो द अमेंडमेंट, होगा तो लिख लेना, आई विल चेक टुमारो। 2003 96 क्या करा गया है ओडिया को? नाम चेंज हुआ होगा, ओडिया तो पहले से है। हाँ बस बस, ठीक है, ठीक है, 2003, 2003, ठीक है। चलिए,
उसके बाद सेंसस 2011 का डेटा लिखो जो लेटेस्ट है हमारे पास लैंग्वेजेस को लेके। हाँ मैं एक मिनट इसके बाद बताता हूँ। भारत में 121 मदर टंग्स हैं, 121 मदर टंग्स हैं, जिनमें से 22 आर देयर इन 8th शेड्यूल, 22 उनमें से 8th शेड्यूल में है। एंड एक थोड़ा सा एक्सट्रीम फैक्ट है, अगर यूपीएससी पूछे कि भाई 43% ऑफ इंडियंस हैव हिंदी लैंग्वेज समवेयर इन देयर डायलेक्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेंसस बोलता है 43% भारतीयों की कहीं ना कहीं डायलेक्ट की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, चलो अब मुझे बताना संस्कृत है जी 8th शेड्यूल में? यस है। उर्दू है? ठीक है। नेपाली है? कश्मीरी है? यस ठीक है। इंग्लिश है? इंग्लिश नहीं है। ठीक है। राजस्थानी है? नहीं है। चलिए, हरियाणवी है? नहीं है। लद्दाखी है? नहीं। ठीक है, बस ये 4 में कंफ्यूज है, लद्दाखी, हरियाणवी, राजस्थानी, ये सब नहीं है। ठीक है जी। चलिए उसके बाद एक हेडिंग बना लो, क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेजेस, तो ये फिनोमिना इंडिपेंडेंस के टाइम से हमारे पास नहीं था। बेसिकली हम 2004 में ये क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस लेके आए थे लैंग्वेजेस के लिए। पहली लैंग्वेज जो हमने इसमें एलोकेट करी थी दैट वाज तमिल। तमिल वाज द फर्स्ट लैंग्वेज, यू शुड नो। लेटेस्ट एडिशन इज ओडिया। लेटेस्ट एडिशन इज ओडिया। चलो क्राइटेरिया क्या है जी? हाँ, 2 ही क्राइटेरिया है जो ओरिजिनली मेंशन है। उसका जो टेक्स्ट है अराउंड 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए एंड इट शुड बी ओरिजिनल नॉट बोरोड। इट शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड। 2 क्राइटेरिया है। और ऐसा जरूर हो सकता है कि भाई जो उसका क्लासिकल लैंग्वेजेस चलता हो उसका और उसके मॉडर्न का कोई ना कोई आपस में डिस्कनेक्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जैसे राहुल का ऑप्शन है संस्कृत, तो कौन सा वर्जन राहुल जो प्रेजेंटली पढ़ते हैं संस्कृत का कौन सा वर्जन है? ये पुराने वाली संस्कृत है क्या? हाँ, वैदिक संस्कृत है जी। तो व्हाट हैपेंस इज कि बेसिकली मान लीजिए तब कुछ और थी, अब इसका डिस्कनेक्ट की वजह से मॉडर्न फॉर्म और हो गई, बट स्टिल इट इज ओरिजिनल। इसके जैसा और कोई नहीं, कहीं से बोरो नहीं करा गया। इट विल बी अ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है। किसका? स्क्रिप्ट विप्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं। पता है यार क्या होता है, देखो फॉर एन एग्जांपल, जो संस्कृत गुप्तास के टाइम पे चलती थी ना, वो संस्कृत आज नहीं चलती। ठीक है। सो बाय दिस व्हाट वी मीन कि भाई इनमें जो इसकी क्लासिकल फॉर्म थी व्हेन इट ओरिजिनेटेड और इसकी मॉडर्न फॉर्म में एक डिस्कनेक्ट आ गया है। ये किसी भी लैंग्वेज को अगर हम क्लासिकल स्टेटस देने लगे हैं तो क्राइटेरिया हम नहीं कंसिडर करेंगे कि डिस्कनेक्ट आया या नहीं आया। ठीक है, दिस इज द थिंग। चलिए उसके बाद हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस हैं जी? क्लासिकल 6। तमिल अपनी पहली थी, दूसरी संस्कृत, वंडरफुल, तीसरी तेलुगु, चौथी कन्नड़, देन मलयालम एंड ओडिया। मलयालम एंड ओडिया। अच्छा, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज? ऐसी फैक्ट है, याद मत रखना। वर्ल्ड में इंग्लिश, इंडिया में तो हिंदी है 43%, हमने भी करा। इंग्लिश सेकंड मैंडरिन। अच्छा, एक और चीज, वर्ल्ड में देयर वाज दिस, ये भी अपने सेंसस में ही लिखा था, आफ्टर हिंदी कौन सी ऐसी भारतीय लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? बंगाली। व्हाई? बांग्लादेश वाला सीन आ जाता है बीच में, दैट इज आल्सो काउंटेड, दे आल्सो स्पीक बंगाली। ठीक है, याद रखना बंगाली इज। चलिए जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th शेड्यूल हमने कर लिया आज डिटेल में, इसके ज्यादा और है नहीं 8th शेड्यूल में कुछ। वो जो ऑफिसर वगैरह है ना 350 के अंदर आता है, वो जब बॉडीज आएंगी तब करेंगे उसको। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेना कि भाई ऑफिसर को रेफर करना है, लास्ट मोमेंट रिवीजन साथ ही करना है इनकी। बंगाली देखो, हिंदी आती है 3रे नंबर पे वर्ल्ड ओवर, और 7वें नंबर पे बंगाली आती है उसमें वर्ल्ड ओवर में। कोई भी अगर दूसरे नंबर पे भारतीय लैंग्वेज आती है वो बंगाली आती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements with respect to parliamentary sovereignty. The concept implies that no parliament can pass laws that future parliaments cannot change or repeal. Yes, ऐसा थोड़ी होगा। ब्रिटेन का मान लो कोई भी 1600 का पार्लियामेंट था, उसको आज वो तो चेंज कर ही सकते हैं। पार्लियामेंट इन इट्स सोवरेन। ठीक है,
द कॉन्सेप्ट इज प्रैक्टिस इन यूके एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पता था? नहीं पता था। हाँ जी, ठीक है। The principle of parliamentary sovereignty asserts that supremacy of parliament over all other government institutions. Yes. चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 12th का आंसर वुड बी पास दैट। पहला गलत है यार। The concept implies that no parliament can pass laws that future parliaments cannot change or repeal. That no parliament can pass the law that future parliaments। सही तो है यार, हाँ सही है स्टेटमेंट। जो हम समझ रहे हैं मुजफ्फर वही है, लेकिन हम सेंटेंस को गलत पढ़ रहे हैं इसी। देखो, द कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इंप्लाइज दैट नो पार्लियामेंट कैन पास लॉज दैट फ्यूचर पार्लियामेंट्स कैन नॉट चेंज और रिपील। कि कोई भी ऐसा पार्लियामेंट वैसा कानून पास नहीं कर सकता जो फ्यूचर पार्लियामेंट वगैरह रिपील नहीं कर पाए। यही तो मतलब है, हाँ कि नहीं हो पाएगा। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, पार्लियामेंट तो बदल ही सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सही थी बट वी वर रीडिंग इट इन अ रॉन्ग। तो पहला सही है, दूसरा सही है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट ओवर ऑल गवर्नमेंट डिसीजन, तीसरा भी सही। ऑल थ्री आर करेक्ट, ऑल थ्री आर करेक्ट। चलिए, with reference to secularism in India, consider the following statements. The word secularism was not present in the original constitution and was added through 44th Amendment Act, 42nd Amendment Act. The Supreme Court laid down the constitution is federal and held federalism as its part of basic structure. Correct? हाँ, ठीक है। The Indian Constitution embodies the negative concept of secularism, that is, there is a complete separation of positive, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो वैल्यूडेशन वाली चीज है जी, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस जी, हाँ हाँ जी, वो हम यार ना सेक्युलरिज्म एज अ टॉपिक को डील करेंगे। मैं विल बी डीलिंग आर्टिकल 25, 26, 27 वाला, ठीक है। आज इसमें चलो, इसमें हम वैल्यूडेशन आज बेसिक स्ट्रक्चर कवर करके चलेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए जी, क्या है जी बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, विच आई वाज टेलिंग यू कि इट मेक्स द इंडियन जुडिशरी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ मतलब बट why was basic structure needed in fact? बट ये क्यों चाहिए था? आपको करना भी है अमेंडमेंट तो आप करो, क्योंकि जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था जिससे एफआर और डीपीएससी दोनों सफल हो गया था कि नहीं एफआर ज्यादा सुप्रीम है कि डीपीएससी ज्यादा सुप्रीम है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आर्टिकल 39 बी और सी में कंपेयर कर सकते हैं to preserve the actual values of constitutional what बताओ और सोचो, थोड़ा सा और डेप्थ में जाओ। सी व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से नहीं है ये सब कुछ होगा, मतलब सी द रियल लॉजिक वाज, लेट्स से पार्लियामेंट है जी, ठीक है, अपने पास पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का कोई भी ऐसा आर्टिकल बताओ जिसमें पार्लियामेंट को कुछ पावर मिलती है, बताओ एनी आर्टिकल। 280 ले लें, 280 फाइनेंस कमीशन बनाना है, ठीक है। लेट्स से वो फाइनेंस कमीशन बनाने लगा है और पार्लियामेंट ने फाइनेंस कमीशन बनाने टाइम लेट्स से इन 5 लाइनों को फॉलो करना था और पार्लियामेंट ने इन 4 लाइनों को ही फॉलो करा, 5वीं लाइन नहीं फॉलो करी, ठीक है। अभी ये पार्लियामेंट में करा या नहीं करा ये किसका जिम्मा है देखना, जुडिशरी का। लेकिन जुडिशरी यहां पे क्या है, चेकर है। किस चीज को चेक कर रहा है, इस चीज को कि लाइनें कितनी हैं, 4 होनी कितनी चाहिए थी, 5। इस कंटेक्स्ट में उसे पता कहां से चल रहा है कि भाई 5 लाइनें थी, कॉन्स्टिट्यूशन से। बट लेट्स से
पार्लियामेंट ने आर्टिकल 280 ही अमेंड कर दिया, तब वो 5 लाइनें कहां से मिलाएगा? दिस वॉज द प्रॉब्लम कि भाई व्हेन पार्लियामेंट वाज डूइंग इट्स नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तब तो जुडिशरी चेक रख लेगा, और चेक कैसे रखेगा? बाय सीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई इज इट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। बट व्हेन पार्लियामेंट इज गोइंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, फिर उसका वो बेस कहां होगा? किससे तहत रख के चेक करेगा? डिस्कशन हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वहां पे वो इंटेंशन चेक किया जाएगा कि उस आर्टिकल को डालते वक्त इंटेंशन क्या चेंज हो गया, ठीक है ना, फिर उससे जुडिशियल रिव्यू भी तो है ना। हम क्या बात कर रहे हैं, अब क्या बोल रहे हो? हाँ, कि वो कहां से हम कहां से मतलब डिसिफर करेंगे कि ये लाइन होनी चाहिए थी या नहीं, यही ना, जब पांचवी लाइन हटा दी पार्लियामेंट ने। हाँ अभी तो उस पे आ रहे हैं ना, कहां से डिसाइफर करेंगे, अभी तो मैं बता रहा हूँ ये है क्या। मैं वही बता रहा था कि कहां से करेंगे। हाँ कहां से करेंगे, नहीं पहले समझो ये है क्यों। हाँ यू हैव अ क्वेश्चन मार्क? नहीं, मैं बता रहा था। मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। डिड आई आस्क? 280 आर्टिकल के अंदर नाउ द पार्लियामेंट इज अमेंडिंग व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मान लीजिए पार्लियामेंट को कोई पावर है 280 के अंडर, वो तो जुडिशरी चेक कर लेगी कि भाई जो 80 में लिखा था वैसा ही करा है कि नहीं करा। अगर 80 को अमेंड कर दिया फिर क्या देखेगी? उसको देखने के लिए उसने एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन ड्राइव करा जिसका नाम रखा गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। समझ गए? नाउ if I make a statement कि भाई which is the only provision in the Constitution of India which makes Indian judiciary the strongest one in the world? Basic structure doctrine. This is the doctrine. ठीक है, वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि भाई मापेगा कैसे, इंटेंट देखना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले सही कहना चाह रहे थे कि नहीं। लेकिन उस चीजों में क्या होता है, कई बार डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में भी जुडिशरी क्या करती है? क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन लगा देती है। एंड व्हाट वाज क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन? when judiciary tries to interpret something different from what constituent assembly was trying to say। तो ये टोटली जुडिशरी के ऊपर बेस है। हाँ it is in fact doctrine of basic structure itself is a creative interpretation, output of creative interpretation। एंड यहां से फिर एक चीज और ड्राइव कर लो, क्या ड्राइव हो सकता है यहां से? कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी और सुप्रीमेसी इज इक्वल टू जुडिशियल सुप्रीमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन इज what जजेस से। Again able to relate what is constitution, what judges say। That's why India has judicial supremacy। ठीक है जी? किसको जी? It is not defined। अच्छी बात है, नहीं डिफाइंड है, अच्छी, it's good thing I feel। इसमें ना यार एक MCQ बनता था, let me see if I have। चलो ठीक है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए एमसीक्यू विल डू इन देयर। अच्छा एक्ट्स हम आज रेफर नहीं करेंगे, 1973 का एक्ट कर लेते हैं एक, ठीक है? 73 वाला क्वेश्चन है, बाकी एक्ट्स का परसों एक दिन रखेंगे टेस्ट रोक के, बिकॉज इसमें थोड़ा सिलेबस है जो आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए वील कंप्लीट डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो एक दिन टेस्ट नहीं लेंगे बट वील कंप्लीट द सिलेबस, राइट? चलो पहला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। The British cabinet was given the right to exercise control over East India Company's affair in India for the first time। इससे पहले कब था? नहीं था, this was the first time, ठीक है? The governor of Bengal was made the governor general of India with an executive council of 4 members to assist him। (33) में डिक्लेयर करा गया था। वंडरफुल। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 3, it excluded the matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of Supreme Court of Calcutta। करेक्ट है? It was in 84 I guess, या Act of Settlement 81, Act of Settlement, ठीक है। It made governors of Bombay Madras Presidency subordinate to the Governor General of Bengal। ठीक है। अच्छा, आंसर वुड बी बच्चे only 2 are correct। ऑप्शन नंबर 1 is correct and 4 is correct जी।
अच्छा, इसमें ना एक्ट्स में व्हाट हैपेंस इज इफ यू आस्क मी कि द मोस्ट कंसिस्टेंट चैप्टर ऑफ पॉलिटी यही है। यू सी फ्रॉम 2014 हर एक साल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। सो इस चैप्टर को हम डिटेल में करेंगे। आज वील जस्ट डू वन एक्ट ओनली, क्योंकि और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, एंड 2 दिन बाद वील कवर ऑल दीज एक्ट्स इन डिटेल। ठीक है, तो आज 1773 के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो जो समझने में आपकी मदद करेंगे। तो बेसिकली इसके बैकड्रॉप में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गई थी, ठीक है, ट्रेड करने की। तो जब उसको मोनोपोली मिली तो ईआईसी ने उस मोनोपोली को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, एंड मैनिपुलेट करके एक कीवर्ड लिखो जो शेखर बंदोपाध्याय लिखते हैं, ईआईसी बन गई सेमी सॉवरेन एंटिटी। ईआईसी बिकेम सेमी सॉवरेन एंटिटी। वो कौन सा क्वेश्चन था यार जो और किसी सोर्स में नहीं था हिस्ट्री का? इट वाज ओनली इन शेखर बंदोपाध्याय। इट वाज रिलेटेड टू गर्ल्स 1780s का। हाँ, रखमाबाई डिफेंस कमेटी, रखमाबाई डिफेंस कमेटी। हाँ, तो वैसे इसमें लिखो सेमी सॉवरेन एंटिटी ईआईसी को बोला गया है इनके द्वारा। ये किताब फेवरेट है यूपीएससी की थोड़ी पिछले कुछ सालों से। हाँ, चलो आगे लिखो, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर द रेगुलेटिंग एक्ट। तो कीवर्ड्स लिखते रहना, पता होगा तो ठीक है, नहीं तो यू कैन स्किप इट, राइट। तो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था जी? डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी गई थी, या डुअल एडमिनिस्ट्रेशन बोल लीजिए। उस वक्त के ऊपर क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर दोनों जीती जा चुकी थी। सो इस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीजें करी गई। देखो, स्टेट में ना मुख्य दो चीजें होती हैं, एक पैसा इकट्ठा करना लोगों से, फिस्कल पॉलिसी है ना, और दूसरा लोगों को प्रोटेक्शन देना। तो उन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या चीज रख ली? फिस्कल चीज रख ली, और प्रोटेक्शन देने वाला काम किसको दे दिया? निजामत को दे दिया। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ? लोग बीच में पिसने लग गए, लोग बीच में फंसने लग गए। नाउ इसका रिजल्ट क्या था? व्हाट हैपेंड? हाँ, आई एम कमिंग। जी जी जी, वेरी ट्रू। सो बेसिकली जो, क्या नाम था, विवेक, हाँ विवेक। तो विवेक जो स्टोरी बता रहे हैं वो ये है कि होता क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर्स थे वो ब्रिटिश के पार्लियामेंटेरियंस ही थे। दे वर द मेजर शेयर होल्डर्स इन दैट कंपनी। तो ये कंपनी वहां जाके उनसे लोन अप्लाई कर रही है, और लेकिन जब इनके रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग वहां पे जा रहे हैं, दे आर रिच इंडिविजुअल्स, तो उनको डिलेमा नहीं समझ में आ रहा कि भाई चल क्या रहा है। जो कंपनी में एम्प्लॉइज है वो अमीर है, कंपनी अपना डेट फाइल कर रही है, लोन मांग रही है। इस वजह से दे वांट टू कंसोलिडेटेड द एम्पायर। फिर हमें अभी क्या देखने को मिलेगा? अभी एक ट्रेंड समझ लो एक्ट्स में, कल वैसे करने जा ही रहे हैं। अभी से क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करेगा, कंपनी में थ्रू अपने साम्राज्य की सेंट्रलाइजेशन या कंसोलिडेशन शुरू कर देगा। ये कब तक चलेगी? 53 तक चलेगी, 1853 तक चलेगी। 53 में व्हेन यू विल सी द बैटल और दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857, फिर कंपनी को थोड़ी अकल आएगी, एंड देन वो 1861 लॉर्ड कैनिंग का पोर्टफोलियो सिस्टम, वहां से अपनी सारी की सारी डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये पैटर्न नोटिस में रखना। अभी हम जैसे जैसे जाएंगे, जैसे अभी वाला रेगुलेटिंग एक्ट में आपको एक क्वेश्चन है कि भाई गवर्नर ऑफ बंगाल और सॉरी मद्रास और बॉम्बे वर मेड सबऑर्डिनेट, तो धीरे धीरे करके अभी तो इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया है, 33 तक इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा, राइट। तो वील नोटिस दिस चेंजेस। बट इसमें एक चीज याद रखना, वैसे हम किसमें करेंगे, एंशिएंट चैप्टर 1 में करेंगे कवर इसको। 1770 और 1784 वाला फेमाइन आया था, ठीक है, इट लेड इनटू द फेमाइन। 1770 वाला प्योर रीजन वाज ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिसी। इसमें देयर वाज इफेक्ट ऑफ एल नीनो आल्सो, एंड यू नो हाउ मेनी पीपल डाइड? 11 मिलियन पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, 11 मिलियन। एंड दिस इज फेमस इन योर होम्स इन द नेम ऑफ चालसिया अकाल। बोलते हैं ना घरों पे चलिसिया अकाल, या उसके बाद बोलेंगे छप्पनिया दो काल। वो क्यों बोला जाता है इसको चलिसिया अकाल? हाँ तुम लोगों को सारी चीजें बतानी नहीं चाहिए पहले।
सी सो देयर इज वन थिंग, विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत कब से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 56 एडी के 56 बीसी, 56-57 के करीब, ठीक है। नाउ से मतलब अगर ये हमसे पहले शुरू हो गया, हम कहां से शुरू हुए? 0 से। दिस मीन्स जिस दिन हमारा पहला साल होगा, इसके कितने हो गए होंगे? 56, 57, 56 इज द नंबर प्रिसाइज जो आरएस शर्मा भी मेंशन करते हैं, 56 हो गए होंगे। तो जिस दिन हमारा पहला साल है, ये 56 साल ऑलरेडी कर गया। नाउ इफ 1784 में फेमाइन आता है, तो इसका कौन सा साल बनेगा? प्लस 56 इज इक्वल टू 1840, इसलिए बोला जाता है चालसिया अकाल, ठीक है, जो चालसिया फेमस है ना हमारे घरों में। एंड एक चीज और याद रख लेना, विक्रम संवत इज फेमस इन द फॉर्म ऑफ अकाल्स एंड ऑल। एक दूसरा चलता है शाक संवत, ठीक है। शक संवत इज नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, दैट इज नेशनल कैलेंडर, वो याद है, वो करेंगे वैसे एंशिएंट में विल डू, अभी इतना याद रखना। चलो मेक अ हेडिंग, व्हाट चेंजेस वर मेड, व्हाट चेंजेस वर मेड, what changes were made after regulating act of 1773? लिखो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के नीचे एक एरो निकालो, एंड विच मींस कंसोलिडेशन इज इक्वल टू सेंट्रलाइजेशन, कंसोलिडेशन इज इक्वल टू सेंट्रलाइजेशन, एंड सेंट्रलाइजेशन के ब्रैकेट में लिख लो जी ऑफ बी टू जीजी ऑफ बी, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीबी टू जीजीबी या जी ऑफ बी टू जीजी ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद लिखो चेंजेस एट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, चेंजेस इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कहां वाले चेंजेस हैं? जो उन्होंने अपने घर पे करे, दैट मींस द चेंजेस व्हिच वर डन इन लंदन, ये वो चेंजेस हैं, पहले उसमें डिवाइड करो। लिखो नो फॉर्मल चेंजेस, नो फॉर्मल चेंजेस, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रॉट अंडर सुपरविजन, सीओडी ब्रॉट अंडर सुपरविजन। अच्छा, बहुत लोग ना इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं सीओडी एंड बीओ, सीओडी एंड बीओसी में। तो याद रखना डायरेक्टर किसका होता है? कंपनी का। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंपनी के हैं, ठीक है। इनको कंट्रोल कौन कर रहा था? पार्लियामेंट, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। हाँ, सीओडी यूज्ड टू रिकमेंड जी। चलिए आगे लिखो, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत के लेवल के ऊपर क्या चेंजेस हुए? लिखो कंसोलिडेशन प्लस सेंट्रलाइजेशन, consolidation and centralization started, consolidation and centralization started. लिखो how question mark, right? status of GB upgraded to GGB, 2-3 बार रिवाइज करोगे, शॉर्ट फॉर्म समझ में आ जाएंगे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल बंगाल। And Madras and Bombay presidencies were made subordinate to him, and Bombay and Madras were made subordinate to him. Second लिखो, GGB to have executive councils, क्योंकि responsibilities बढ़ गई हैं, वर्कलोड अगर बढ़ गया तो बंदे भी ज्यादा चाहिए, है ना। तो GGB has executive council of 4 members, या सीधा लिख लो जीजीबी प्लस 4 ईसी, जीजीबी प्लस 4 ईसी, ऐसे शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। लिखो फंक्शन इज इक्वल टू रूल रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस, रूल रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस फॉर फोर्ट्स एंड फैक्ट्रीज। यू नो व्हाट वर फैक्ट्रीज? इन्होंने स्टार्ट इधर से करा था, फैक्ट्रीज आज वाली फैक्ट्रीज नहीं थी, फैक्ट्रीज मतलब इनके गोडाउन्स होते थे, तो गोडाउन्स में से चोरी चकारी का डर होता था, तो इन्होंने बाद में उनको 4 दीवारी करना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी, दैट टर्न्ड इनटू फोर्ट्स, फोर्ट विलियम्स एक्सेट्रा, ये था, ठीक है।
अगला लिखो, अब इतना कुछ तामझाम हो गया है तो लोगों के बीच में डिस्प्यूट भी आ सकते हैं, है ना। जब डिस्प्यूट आएंगे तो क्या चाहिए, जुडिशरी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे, वंडरफुल। एलिजा इम्फे, IMPHEY, ELZIAH, एलिजा इम्फे। ठीक है जी। उसके बाद हल्का सा पॉइंट लिखो एनालिसिस का, क्योंकि यूपीएससी अभी एक्ट्स की एनालिसिस भी प्रीलिम्स में पूछने लग गया है। अगर यूपीएससी बोले इट एस्टैब्लिश्ड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड ओवर EIC, यस और नो? नो, नो इफेक्टिव कंट्रोल। क्योंकि हमने क्या करा है, अगर कंपनी को ब्रिटेन ने कंट्रोल करना होता तो मेजर चेंजेस कहां पे होते, एट होम। हमने क्या लिखा, होम में क्या था, नो फॉर्मल चेंजेस, हेंस देयर वाज नो इफेक्टिव सुपरविजन। ठीक है जी, पहला पॉइंट। सेकेंडली, हाउ वाज काउंसिल वर्किंग? काउंसिल कैसे काम कर रही थी, GGB प्लस 4EC। हाँ, वंडरफुल, लिखो GGB प्लस 4EC इज इक्वल टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। GGB प्लस 4EC इज इक्वल टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में वही लिखो, ब्रैकेट में लिख लो, बिकॉज गवर्नर डिड नॉट हैव कास्टिंग वोट, सॉरी, गवर्नर डिड हैव कास्टिंग वोट, गवर्नर डिड हैव कास्टिंग वोट बट नो ओवरराइडिंग पावर्स। कास्टिंग वोट थी बट ओवरराइडिंग पावर्स नहीं थी। एंड लास्टली, अगर यूपीएससी ज्यादा ही टफ चला जाए, घुमा के आपको ये दे दे कि भाई पावर्स ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ मेड्रास एंड बॉम्बे वर क्लियरली डिफाइंड, कुछ ऐसा नहीं था, वेगली, सब एक्ट वेग था, इतना खास नहीं था। ठीक है, हाँ, ओवरराइडिंग पावर का मतलब होता है कि भाई अगर डिसीजन उसने दे दिया तो इट विल ओवर पावर एवरीवन, गवर्नर की मान के चलेंगे। कास्टिंग वोट मतलब 4 बंदे हैं, 2 ने हाँ बोला, 2 ने ना बोला, तीसरी वोट उसकी होगी। चलिए जी, विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? शेखर बंदोपाध्याय, शेखर बंदोपाध्याय, प्लासी टू पार्टीशन नाम है उसका। पढ़ना मत मैम, मतलब आई हैव इनकलकेटेड ऑल दोस इन हिस्ट्री टेस्ट, आपको मिल जाएगी वो बुक एज सच नोट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। Consider the following statements in respect of the Constitution Day. The Constitution Day is celebrated on 26th November every year to promote constitutional values among citizens. Yes. 26th November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar to prepare a draft Constitution of India. नहीं, आंसर इज सी। ठीक है, आगे, with respect to the rigidity of the Constitution, consider the following statements. First, coalition governments at state level, कोई लेना देना ही नहीं है, सर पैर ही नहीं है, वेरी ट्रू, वंडरफुल। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यस, इट मेक्स रिजिड। अच्छा, इसमें ना एक फॉर्मूला लिख लो, जो भी चीज गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर रहा होगा वो चीज रिजिडिटी बनाएगा, नॉट, सॉरी, जो चीज लेजिस्लेचर की पावर को लिमिट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, एंड फॉर पॉलिटी डू रिमेंबर, अगर यूपीएससी ने कहीं भी शब्द यूज करा है गवर्नमेंट, दैट मींस एग्जीक्यूटिव, ओनली एग्जीक्यूटिव। अपने प्रीलिम्स के एमसीक्यूज के लिए, हमारी क्लासेस के लिए भी, इफ आई से गवर्नमेंट दैट मींस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो भी चीज लेजिस्लेचर की पावर को रोकेगा दैट इज ब्रिंगिंग रिजिडिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज याद रखना फॉर्मूला। चलो आगे है डिक्रीज्ड पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी, कोई लेना देना नहीं है इसका भी। ठीक है, सो ओनली वन इज करेक्ट। चलिए, हाँ, डिक्रीज्ड पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी तो वो उसका मतलब ये सेशंस के इंटरप्शन से होता है, ये यहाँ पे सच में कोई लेना देना नहीं है, लॉ पास करना भी तो प्रोडक्टिविटी हो गया। डिक्रीज्ड पार्लियामेंट, तो वो रिजिडिटी कैसे बढ़ाएगा? It is saying it is with respect to the rigidity. Consider the following statements. How it is rigid? Parliamentary productivity किस हिसाब से? Parliamentary productivity में मल्टी डायमेंशनल है, क्वालिटी ऑफ डिबेट्स, कितनी एडजर्नमेंट्स हो रही हैं, कितना कुछ और हो रहा है, दिस इज पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी। हाँ, मैम वो जान के नहीं करा, वो जिस दिन एक्ट्स करेंगे उस दिन करेंगे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following elements are essential for federal polity? पहले समझ लो फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म
फेडरलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल? क्या होता है जी फेडरल? डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है, बिटवीन टू लेवल्स, और नहीं हो सकता कहीं भी, और कहीं नहीं हो सकता. सी, दिस इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस फेडरस. फेडरस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, किसी के बीच में भी हो सकता है, ठीक है. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ whenever a contract will be there, आप जैसे मान लीजिए, आई होप यू ऑल पीपल आर स्टेइंग इन ओवरएन, तो आपका भी कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके साथ? अपने ओनर के साथ होगा ना, आप दोनों का. सो यू आर ऑल्सो इन अ फेडरस अग्रीमेंट, आपका भी फेडरस है. नाउ इसके फीचर से देखते रहना, अपने और अपने ओनर के जो जो चीजें होंगी वो एक फेडरल कंट्री के फीचर्स होते हैं, राइट. सबसे पहली चीज, जब भी आप लोगों का रेंट अग्रीमेंट बनता है, वर्बली बनता है, रिटर्न बनता है? रिटर्न. तो हमेशा फेडरलिज्म में कंट्री का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा. विदाउट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कंट्री कैन नॉट एग्जिस्ट, वो चल ही नहीं पाएगा. पहली चीज याद रखना, ठीक है. नाउ इन फ्यूचर इट माइट हैपन कि भाई अगर रिटर्न चीज है तो आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है. अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, देयर विल शुड बी समवन टू रिजॉल्व. इस वजह से सेकंड फीचर वुड बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, चाहिए ही चाहिए. विदाउट इट नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी. सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अभी यूनाइटेड स्टेट्स, इज इट अ फेडरल कंट्री? यस. डज इट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? यस. डज इट हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी? यस. इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. डज इट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? यस. डज इट हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? यस. इज यूके अ फेडरल कंट्री? नो. डज इट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देन? नो. डज इट हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? यस. इंडिपेंडेंट तो है भाई, जुडिशरी सुप्रीम नहीं है. जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड सुप्रीमेसी में फर्क है. इट कैन बी इंडिपेंडेंट इन इट्स फंक्शनिंग बट इट इज नॉट सुप्रीम. इट माइट हैपन, ठीक है. सुप्रीम होने का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, राइट. चलो अब देखते हैं जी, सॉरी इससे पहले भी दो चीजें देखो. फेडरलिज्म, दो तरीके का फेडरलिज्म होता है. एक होता है आपका सिमेट्रिक, सेकंड इज योर एसिमेट्रिक. सिमेट्रिक फेडरलिज्म की हम जब भी बात करते हैं तो जितने भी पार्टीज टू अग्रीमेंट होंगी उन सबके बीच में इक्वल पावर्स वुड बी डिवाइडेड, ठीक है. लेकिन जब भी हम असिमेट्रिक की बात करते हैं सो द पावर शेयरिंग विल नॉट बी इक्वल, राइट. राइट. नाउ 3 वेज ऑफ पावर शेयरिंग समझो पहले, जिससे आपका डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन निकल जाएंगे. सबसे पहला वे होता है डेलीगेशन. What do you mean by delegation? ठीक है, अपनी पावर्स कॉन्फर कर देना. सेकंड कीवर्ड इज, लिखना मत अब इसको. सेकंड इज डेवोल्यूशन. इसमें अपनी पावर्स डिवॉल्व कर देना, ठीक है. थर्ड होता है डिसेंट्रलाइजेशन, अपनी पावर डिसेंट्रलाइज कर देना. फोर्थ होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अपनी पावर सबऑर्डिनेट्स को दे देना, ठीक है. चलिए, नाउ सब में वी आर गिविंग द पावर्स, सब में वी आर गिविंग द पावर्स, बट हाउ वी गिव द पावर्स इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, ठीक है. अगर मान लीजिए सेंटर, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, कोई भी हो सकता है, सेंटर स्टेट, एनी टू पार्टीज कैन बी देयर. नाउ इफ सेंटर इज गिविंग द पावर टू द स्टेट्स एंड द पावर इज जस्ट बीइंग गिवन बाय पासिंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, दैट इज योर डेलीगेशन. इफ एन एग्जीक्यूटिव पावर पास करके यूनियन अपनी पावर स्टेट को दे रहा है, दैट इज डेलीगेशन. अगर कोई लॉ पास करके यूनियन अपनी पावर स्टेट्स को दे रहा है, इट इज कॉल्ड एज डेवोल्यूशन, ठीक है जी. नाउ थर्ड थिंग, डिसेंट्रलाइजेशन. व्हेन पार्टीज आर देयर, ठीक है, देयर कैन बी 2 पार्टीज, लेकिन जितनी भी पार्टीज हैं ऑल आर डिराइविंग देयर पावर फ्रॉम द वन सेम सोर्स, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. That is called as what? Decentralization. Wonderful. मैं वही example. If I now say you that 73rd and 74th Constitutional Amendment Act is an example of, out of these 3, किसका है? Decentralization. Because even if the local governments are constituted by parliamentary act, by amending the constitution, but still local self-governments are driving their power from constitution itself. States are driving their power from constitution itself. Center is driving from constitution itself. But it might happen that center has more power, state has less power. That's why we have asymmetric federalism. ठीक है जी. Now
लास्ट कीवर्ड जो अभी अभी न्यूज में चलने लगा है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. व्हाट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? वंडरफुल. तो जो एग्जीक्यूटिव जो एक्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. नहीं, एक्ट नहीं बनाता. आपकी बात हाँ मैं समझ रहा हूँ. जी जी जी. सी व्हाट हैपेंस इज पार्लियामेंट जस्ट पासेस द लॉ. पार्लियामेंट लॉ पास कर देगा कि भाई मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पास कर दिया, इसकी माइन्यूट डिटेल्स एग्जीक्यूटिव यू प्लीज फॉर्मुलेट. दैट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. व्हेन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स, बट बाकी की सारी ड्यूटीज वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देता है कि भाई मैंने ये ब्रॉड लॉ बना दिया, नाउ यू प्लीज डिफाइन द माइन्यूट डिटेल्स. दैट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. एनी डाउट बिटवीन दीस 4 टर्म्स? ठीक है. और ज्यादा डिटेल में देखना है असिमेट्रिक फेडरलिज्म को, तो इंडिया में द फर्स्ट डिवीजन वी हैव, या ये आपका मेंस में डायग्राम भी बन सकता है कहीं भी. ठीक है. सो यू कैन रिमेंबर कि भाई सबसे पहले लेवल के ऊपर सेंटर इज नॉट इक्वल टू स्टेट्स. ठीक है. देन इन स्टेट्स आल्सो वी हैव 2 टाइप्स. One are your states, other are your union and territories, right? States maybe we have 2 states. One is the normal states, other with the states with special status. 371 वाले सारे articles. And in UTs also we have UTs with the legislature and we have UTs without legislature. This is not equal, this is not equal, this is not equal. Everything is example of asymmetric federalism. ठीक है जी. चलिए. क्या जी? ब्रेक लेना है? क्लास खत्म ही होने वाला है यार, बस 7:45 पे खत्म करते हैं. मेरी अगली क्लास है 8:30 बजे. कल से विल मैनेज टाइम. ठीक है. Which of the following elements are essential for a federal polity? First, division of power between different levels of government. Yes. Separation of power between different levels of government. ये बताओ. नहीं चाहिए फेडरल के लिए? पक्का? क्यों? वंडरफुल. ठीक है जी. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? यस, मैंडेटरी. देन जुडिशियल सुप्रीमेसी चाहिए ही चाहिए टू सस्टेन इट. थर्ड वुड बी 2 पार्टी सिस्टम. जरूरी नहीं है. देखो दो चीजें की सुप्रीमेसी होगी. यहाँ संविधान की होगी, यहाँ पार्लियामेंट की होगी. तीसरा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. अगर इन दोनों में से किसी की नहीं है फिर वो मोनार्की चली जाएगी, किंग की होगी. जुडिशियल सुप्रीमेसी इज कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी. यही तो करा. कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट जजेस से. तो चाहे वो दिया है चाहे वो दिया है, हमारे लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है. देखो जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब है जो भारत वाला सीन है. ब्रिटेन में भारत वाला जुडिशरी का सीन नहीं है, बट स्टिल जुडिशरी कैन चैलेंज एग्जीक्यूटिव एक्शंस. तो मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट मतलब मैं स्वतंत्र तो हूं अपना काम करने में, पर सुप्रीमेसी का मतलब मैं कोई भी काम कर सकता हूं. दिस इज द मीनिंग. ठीक है. चलिए. Consider the following statements with respect to the 9th schedule of the Constitution. 9th schedule को हम जब आर्टिकल 31B देखेंगे ना, फंडामेंटल राइट्स में, we'll see at that time. अभी देखो, it was added by Parliament to avoid judicial scrutiny. ठीक है. अच्छा, जिनको नहीं पता 9th schedule के बारे में, बेसिकली सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार जिन भी लॉज को वो चाहती है कि भाई इनके ऊपर जुडिशरी रिव्यू ना करे, उनको वो उठा के 9th schedule में डाल देती है. राइट. IR कोहिलो केस है 2007 का. उसके अंदर भी जुडिशरी ने ये बोल दिया कि भाई आप कुछ भी डालो, बट सिंस द इंसेप्शन ऑफ केशव नंद भारती केस 1973 आपने जो भी डाले हैं एंड इफ दे आर वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर वी कैन चैलेंज देम. ठीक है. तो बेसिकली शील्ड प्रोवाइड करता है, लेकिन जुडिशरी ने एक एक्सेप्शन निकाल दिया यार कोहिलो केस में कि भाई अगर 1973 के बाद वो इनकलकेटेड है, क्योंकि 1973 में हमने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया था, एंड देन ऑल्सो इट वायलेट्स, फिर हम उसको नलिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो ये है अपना 9th schedule. Laws passed by the state legislature can also be included. Yes, the Supreme Court in Koto Alwan case ruled that laws included in this schedule after 24th April 1973 are open to judicial review. IR कोहिलो केस. हाँ, IR कोहिलो केस. ठीक है जी. हाँ, Kyoto Alwan is anti-defection. ठीक है. 20. Consider the following pairs. ये factual question है यार. Removal of judges Canadian. नहीं, removal of judges हमने US से लिया है. Law making procedure British Constitution. Yes. Advisory jurisdiction of the Supreme Court Canada. हाँ, wonderful. Canada. Parliamentary privileges UK. जो भी पार्लियामेंट के साथ रिलेटेड है, एवरीथिंग फ्रॉम ब्रिटेन, जो भी पार्लियामेंट के साथ रिलेटेड है, याद रखना इस फिनोमिना को. ठीक है. आंखें मीच के लगा देना टिक.
चलिए, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, ये आपका पीवाईक्यू है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अच्छा, तो बात ये है, देखो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के जो भी मेंबर्स थे, अपनी अपनी प्रोविंसेस थी, वहां से लोगों ने आना था, जो हमने डिवीजन देखी, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर एक्टिंग लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो एक बात याद रखना, आप सबको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिक्कत हो सकती है, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। पता है ना राज्यसभा के एमपीस कैसे इलेक्ट होते हैं, तो कुछ उसी तरह से, बिल्कुल सेम तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट होके आए थे, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो राज्यसभा के कैसे इलेक्ट होते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं एमएलए को, एमएलए वोट डालते हैं राज्यसभा के लिए, तो सिमिलर वे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पीपल वर इलेक्टेड। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी कि भाई आज के जो एमएलएज हैं एसएलए वाले, है ना, उनके लिए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जिसके पास एलिजिबिलिटी है वो वोट करता है। लेकिन क्यों बोला जाता है कि भाई जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना वो खुद लिमिटेड फ्रेंचाइज पे चोजन थे? वंडरफुल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जिन प्रोविजंस के हिसाब से वो खुद इलेक्ट हुए थे, उनमें सिर्फ 3 तरह के लोग वोट कर सकते थे, या तो वो टैक्स अच्छा भरते होते, या उनके पास प्रॉपर्टी अच्छी होती, या उनकी एजुकेशन अच्छी होती। 3 ही प्रोविजंस थी। ठीक है, तो ये चीज याद रख लीजिएगा। एक चीज और रहेगी, सीट्स वर एलोकेटेड, कितने लाख बंदों को एक सीट दी गई थी? 10 लाख, 1 सीट पर मिलियन। वंडरफुल। चलो 22वां क्वेश्चन आज नहीं 24 25 करना है। चलिए, Constituent Assembly did not perform ordinary law making functions before the passage of Indian Independence Act. सही है गलत है? हमने क्या डिस्कशन करा था? मैंने ये बोला था कि भाई हमने अपनी संवैधानिक असेंबली बना ली है, लेकिन संवैधानिक असेंबली बनाने के, उसको कुछ काम करने के लिए लीगल बैकिंग तो होनी चाहिए। लीगल बैकिंग के लिए क्या लेके आए थे? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट परफॉर्म ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग फंक्शंस बिफोर द पैसेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इट इज करेक्ट। सही तो है? ठीक है। When the Constituent Assembly met as a legislative body, it was presided over by G.V. Mavlankar. Yes. Third statement है, Constituent Assembly had 2 vice presidents. Yes. हरेंद्र कुमार मुखर्जी, H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी। इनका पूरा नाम क्या है? राव बहादुर सर्वमंगल थिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी। ये इनका, he is a very huge name. चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, which of the following does not ensure independence of the judiciary in India? ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस। यस, इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंट इन देयर वर्क। ठीक है। सेकंड, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस फॉर द जजेस। यस, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड। यस, व्हाई दिस इज रॉन्ग? ठीक है। फोर्थ, जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट देयर कंसेंट। ये गलत, ये दिस इज ऑप्शन, राइट। अच्छा, 2 चीजें नोट कर लो कि भाई अभी केस ये था कि तमिलनाडु हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी ट्रांसफर कर दी गई थी मेघालय हाई कोर्ट में। ठीक है, हाँ, विमेन जज थे, तो शी रिजाइंड। बट ठीक है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोनाउंसिएशन है कि भाई whenever you want to transfer a high court judge, it should not be as a punitive measure, पनिशमेंट देने के लिए कभी नहीं। सिर्फ 2 ही कारणों की वजह से यू कैन ट्रांसफर द जज। पहला कारण लिखो, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ब्रैकेट में लिख लीजिए इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन पब्लिक इंटरेस्ट, बस दैट्स इट। ठीक है, एंड शुड नॉट बी प्यूनिटिव मेजर्स। अच्छा, ये बताओ कितने लोगों को कंसल्ट करना होता है जी? सीजीआई को। अच्छा, कैसे होता है ट्रांसफर? प्रेसिडेंट डज इट बाय सीजीआई। सीजीआई हैज टू कंसल्ट हाउ मेनी जजेस? 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस 2 सीजीएचसीस। ठीक है, 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। जहां पे जाना है, जहां से आना है उनको, उन वहां के हाई कोर्ट, वहां के चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कोलिजियम रहेगा। ठीक है जी, चलिए ये याद रख लीजिएगा। चलो 27वां क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 70 पर नहीं यार, ये मिक्स क्वेश्चन है। 27 वुड बी 24th वुड बी ए। इनके आंसर्स मैं लास्ट पे डिक्टेट कर देता हूं जो छूटेंगे। ठीक है,
19th आंसर इज मैम इट्स बी, ओनली 2 इज करेक्ट। हाँ, थर्ड वाला गलत है। चलो कितने नंबर क्वेश्चन पे थे हम? 27। चलिए, AVDIC propounded its principles, namely supremacy of the law, equal protection of laws and predominance of legal spirit. हाँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं था, इक्वालिटी बिफोर लॉ था, वही हेर फेर करा गया है यहाँ पे, ठीक है, बस उतना ही था। In Indian context, the meaning of rule of law follows that constitution is a result of rights of the individual. हाँ, हमने कुछ करा ऐसा नहीं ना, तो it's wrong। ठीक है जी, चलिए, let's move to the next question. Consider the following statements with respect to the Constituent Assembly. 28 would be, हाँ जी, D आंसर है जी। Consider the following statements with respect to the Constituent Assembly. First, UP had the largest representation in the Constituent Assembly. Yes. तब उसकी population कितनी थी during independence? During independence, the latest census we had was of 1941, and UP at that point of time had 5.8 crores of population. At that point of time, हाँ? तो उसमें से 5 करोड़ यूपी की थी। चलिए, British Indian provinces and Indian states were allotted a number of seats proportional to their respective populations, roughly in the ratio of 1 to 10 lakhs. Yes, that is true. We've already discussed. Members of the provincial legislative assemblies participated in the election of members to Constituent Assembly. Provincial legislative councils participate in elections to Constituent. नहीं, they elected. ठीक है, चलो। अच्छा, ये बताओ, चलो कौन से वाला यार? देखो, the members of the provincial legislative councils elected the members to Constituent Assembly, not participated in the elections. They elected the members. हाँ, statement में twist है यार, you can take it anyway, but this official statement is from सांसद। तो सांसद की जो अपनी वेबसाइट है वहां पे ये लिखा गया है कि they elected them। हाँ, तो ये इस कीवर्ड को देख लो। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में बात करें तो अगर जो बंदा इलेक्ट कर रहा है वो भी उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ, बट नहीं, इसको यही लिखना, they were elected by the elected members of PLA, elected by the elected members of PLA। नहीं यार, नेवर। वो जो आपको एक डाउट हो रहा है वो ये होगा कि it said that abolition of the Privy Council would be passed on, that's all। वो एक ही पॉइंट है इसमें। PLA और PLC व्हाट? आपने बोला ना इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। असेंबलीज काउंसिल्स बोल रहे थे, बस प्रोविंशियल होना चाहिए वहां पे, स्टेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, वी आर ऑन व्हिच क्वेश्चन नाउ? 30th, राइट? चलिए, the Constituent Assembly adopted a national flag and national anthem before India got its independence. क्या गलती है जी यहाँ पर? एंथम बाद में हुआ था। कब हुआ था? 22nd और 24? ठीक है, चलो। Sir B.N. Rao prepared the initial draft of the Indian Constitution, which was scrutinized by subsequently amending by the drafting committee of the Constituent Assembly. ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ फैक्चुअल है नहीं। आपने नोट्स बना लिए थे ना इसके? ठीक है, परफेक्ट। वो बस टाइमलाइन जो मैंने अभी लिखवाई है ना क्लास में, उसको रटते रहना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उससे निकल जाएंगे। यू कैन सी ऑल्सो। नाउ बेनेगल नरसिंह राव के बारे में एक दो चीजें देख लेते हैं हम, बिकॉज पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन वो पूछने लग गया है। बेनेगल नरसिंह राव बेसिकली ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, और उसके बाद द मेन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि भाई जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था एंड भारत को यूएनएससी की सीट मिली थी, यूएनएससी सीट में जब ये प्रेसिडेंट थे, उसी वक्त के ऊपर हमने जो यूएन का सीमैक ऑपरेशन था कोरिया के लिए, वो लॉन्च करा था, इन्होंने ही करवाया था। ये बात याद रखना बेनेगल नरसिंह राव के बारे में, लिख लो। He was an Indian representative to UNSC. He was the Indian representative to UNSC.
and under his presidentship United Nations Security Council or UNSC launched UN CMAC. CMAC. CMAC stands for Command Military Assistance Commission. Command Military Assistance Commission. For Korea. ठीक है. चलो आ रहा क्वेश्चन नंबर 31 पे. With reference to Article 21, correct answer would be option number A. Only one. One is incorrect. With reference to 21, it contains the expression due process of law, which is quite different from the expression procedure established by law contained in the American Constitution. Correct. देखो ये कहीं नहीं पूछा गया कि लिया किससे था. It says contains. And after मानेका गांधी केस जो हमने अभी तो करा 1980, now judiciary can do what? Due process of law. So it contains the expression due process is quite different from the. ठीक है. This statement is incorrect. हाँ. तो क्या हो गया? You are saying कि sir the thing which is written कि भाई it contains the expression due process of law, ये गलत है या सही है? 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, 21 है. दिस इज करेक्ट. द इनकरेक्ट थिंग इज कि भाई प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ये गलत है. हाँ. In Maneka Gandhi case, the Supreme Court introduced the concept of procedure established by law through its liberal interpretation. फिर due process of law. यहाँ पे liberal interpretation is also wrong. The keyword here is creative interpretation. Right on the doctrine of creative interpretation. इसको भी सही करना. Even if in the answer key it would be mentioned liberal, it is not liberal. I'll explain you. There are two doctrines we will do under Article 13. Doctrine of liberal interpretation and literal interpretation. दोनों different. और उनका मानेका गांधी के साथ कोई लेना देना नहीं है. मानेका गांधी केस में Supreme Court followed the doctrine of creative interpretation. ये नहीं होता, ये नहीं होता. लिबरल एंड लिटरल आप उनको इंग्लिश के शब्दों में ले रहे हो. हाँ, they are political doctrines. For example, there is doctrine of colorable legislation. तो ऐसा नहीं है कलर करके legislation should not be done indirectly. And doctrine of colorable legislation should be verified by doctrine of pith and substance. चलिए, we'll discuss later. क्लासिकल लिबरलिज्म देखो, नहीं, क्लासिकल लिबरलिज्म ना वेल्थ ऑफ नेशंस का कॉन्सेप्ट बाद में आया जब when there was this time of you can call fiscal capitalism. First stage was mercantile capitalism. Mercantile capitalism के बाद अपना कौन सा आया? कॉलोनी वाला capitalism, and then came mercantile. इसको छोड़ो, we'll do another day. The thing is liberalism and freedom में एक और डिफरेंस समझ लो जो हमने पहले नहीं करा. I said you from now onwards liberty and freedom में कोई डिफरेंस नहीं है. एक चीज मैंने फिर बोली थी कि भाई अगर यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल देन देयर इज अ डिफरेंस. जीएस के मुताबिक कोई डिफरेंस नहीं है. व्हाई? सी द टर्म लिबर्टी और द लिबरल थिंग इट गॉट एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कंट्रीज. वेस्टर्न कंट्रीज लिबर्टी को प्रेफर करती थी क्योंकि दे प्रेफर्ड इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी. ठीक है, तो इस वजह से लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एसोसिएट हो गया. एंड वेस्टर्न कंट्रीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन मेजॉरिटी वर फॉलोइंग व्हाट? कैपिटलिज्म. इस वजह से जब भी कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्ति आए, सो जस्ट टू डिसोसिएट देम फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, दे अडॉप्टेड द कीवर्ड फ्रीडम इंस्टेड ऑफ लिबर्टी. तो क्लासिकल लिबरलिज्म जो आपका है ना, क्लासिकल लिबरलिज्म इज जस्ट एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल लिबर्टी. इंडिविजुअल को लिबर्टी देनी है. वी जस्ट हैव टू डू दिस. नाउ कमिंग टू मॉडर्न लिबरलिज्म. मॉडर्न लिबरलिज्म इट इज डूइंग व्हाट? इट वांट्स स्टेट इंटरवेंशन.
फॉर एन एग्जाम्पल मॉडर्न लिबरलिज्म, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मुझे ये बताओ, इंडिया इज अ विच कंट्री, सोशल कंट्री और अ लिबरल कंट्री? सोशल, सोशल वाले हाथ खड़ा करिए। ओके, हाँ, टेल मी हु आर इन द सपोर्ट ऑफ सोशल, प्लीज रेज योर हैंड्स, एंड हु आर इन द सपोर्ट ऑफ लिबरल, प्लीज रेज योर हैंड्स। लिबरल वाले कौन कौन है? वंडरफुल। और रीजन किसके पास है? Wonderful. See, we say that India is a social country. We say that India is a liberal country. Which is the aspect inside the constitution which supports a socialism? One, preamble. Second thing, DPSP. Out of preamble and DPSP, are any of these enforceable in nature? Answer is no. Which is the thing which resembles or which empowers liberty in Indian constitution? Fundamental rights. Are they enforceable? Yes. So in that sense, India is a liberal country. अगर चार ऑप्शंस में आए, सोशल और लिबरल में से लिबरल को टिक करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्लासिकल लिबरलिज्म इन प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे लिबरलिज्म इज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? इज मूविंग टुवर्ड्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोशलिज्म इनटू लिबरलिज्म, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो अगर क्वेश्चन आए कि भाई चार ऑप्शंस में सोशल कंट्री, लिबरल कंट्री एंड तीसरे नंबर पे वेलफेयर स्टेट हो, देन गो फॉर वेलफेयर स्टेट, ठीक है, बिकॉज यूपीएससी सेज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो सोशल और लिबरल में मोस्ट अप्रोप्रिएट इज लिबरल, लिबरल और वेलफेयर में मोस्ट अप्रोप्रिएट इज वेलफेयर, ठीक है। इसको थोड़ी और आपको डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई व्हाई द क्लासिकल लिबरलिज्म स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। व्हेन वी विल डू द हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट टीआईसी की फॉर्मेशन में स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म करेंगे, ठीक है, देन यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड, इंडिया इज नॉट एट ऑल अ सोशलिस्ट कंट्री, राइट? वी आर नॉट अ सोशल, बिकॉज जो भी सोशलिस्टिक प्रोविजंस हैं दे आर नॉट एनफोर्सिएबल इन नेचर, लिबरल वाली ही एनफोर्सिएबल है। चलिए, कौन से क्वेश्चन पे थे जी? 32nd ये नहीं करेंगे, 33rd नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, अच्छा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में तीसरा जो एस्पेक्ट बचता है ना, जो मैंने टेस्ट सीरीज में आई एम ऑब्जर्विंग इन द मार्केट, इस पे क्वेश्चन फंसा रहे हैं कि भाई स्पेशल इनवाइटीज थे या नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन फंसा रहे हैं कि भाई विमेन मेंबर्स कौन से थे, और ये मुझे लगता है यूपीएससी भी फंसा सकता है। यूपीएससी थोड़ा विमेन ओरिएंटेशन में थोड़ा ज्यादा चलता है, तो ये एस्पेक्ट आज तक उसने नहीं पूछा, दैट व्हिच ऑफ द विमेन मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, राइट? इसके बारे में कंफ्यूज कहां पे करेगा, वो वाली चीजें रट लेना, सारे के सारे विमेन के नाम मत रटना, क्योंकि 15 विमेन थी, नाम रटे नहीं जाएंगे। या तो आपको उषा मेहता से कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, जिनका रेडियो चलता था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम के ऊपर, उनके नाम से आपको कंफ्यूज करा जा सकता है। सो इसमें से ऑड वन आउट निकाल लेना, बाकी सारे के सारे होंगे, ठीक है। तो एक ये एस्पेक्ट भी देखिएगा। चलिए, कांग्रेस पार्टी हैड द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस, वेरी ट्रू। हमने करा था ना, स्टार्ट लिखा था, व्हाट वाज द नंबर? 208। हाँ, 208। 73 किसका था? मुस्लिम लीग। और 15 वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए, कांग्रेस असेंबली पार्टी वाज एन अनऑफिशियल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, कांग्रेस पार्टी मेंबर्स एंड सम स्पेशल इनवाइटीज वेयर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस्ड। बताओ कि मतलब कांग्रेस, देखो मैं मतलब समझा देता हूं, हिंदी भाषा में समझो। उस वक्त के ऊपर कांग्रेस ने एज अ पार्टी एंट्री नहीं मारी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। कांग्रेस एक ग्रुप था जिसके साथ सब लोग अपनी एसोसिएशन रखते थे कि भाई मैं कांग्रेस वाला हूं, तो उस हिसाब से अपना आंसर टिक करना कि कांग्रेस वाज नॉट एंटरिंग एज अ पार्टी, बट कांग्रेस ग्रुप था, उनका एक इन्फ्लिक्शन था, ये चीज याद रखना। वो ये बोल रहा है कि भाई कांग्रेस अपने साथ साथ कुछ स्पेशल इनवाइटीज को लेके भी एंटर हुआ था। आंसर इज यस, ठीक है जी। थर्ड इज देयर वर नो विप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसा नहीं है, विप था, ठीक है, विप था। हाँ, इसका नाम नोट कर लो, द नेम ऑफ द विप वाज सत्यनारायण सिन्हा। तो इनको इलेक्ट करा गया था। अभी जैसे ना 3 तरह की विप होती है। व्हाट इज विप? सर एक पार्टी का एक टीम लीडर होता है जो कि बाकी सारे मेंबर्स को कमांड करता है कि तुम्हें इसे वोट करना, और चेक भी करता है कि हाँ उसने तुमने वोट किया है उस पे में या नहीं किया। अच्छा, कैन एनी नॉन मिनिस्टर बी विप? हो सकता है, फिर कोई लीडर तो हुआ नहीं। जस्ट लिसन, पार्टी ना अपना एक डिसीजन लेती है, ठीक है, और पार्टी के डिसीजन के तहत उस बंदे को वो डिसीजन मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है जी? क्योंकि वो उस पार्टी का है, लोगों ने वोट
The reason behind this is when people elected that person, along with that person, people also elected him because they trusted that party. ठीक है, people also voted for his party association. Hence, what the party decision is, what the party mandate is, हर एक पार्टी अपना एक एक बंदा अपॉइंट कर देती है कि भाई कल मान लीजिए, जैसे हमने अमेंडमेंट बिल सारे डिस्कस करे थे, कल मान लीजिए स्पेशल मेजोरिटी की कोई ना कोई बिल साइन होनी है, सो विप विल इश्यू एन इंस्ट्रक्शन वन डे बिफोर, भाई तुम केरला के एमपी हो, चाहे जिसके मर्जी हो, फ्लाइट लेके कल सुबह पहुंचो, यू शुड बी प्रेजेंट इन द वोटिंग बिकॉज आवर पार्टी वांट्स दिस बिल टू गेट पास, सो वी वांट योर अटेंडेंस. ठीक है, और फिर जब हम इस विप को आगे लेके जाएंगे, वी आर ऑल्सो टॉकिंग कि भाई मेंस का आंसर राइटिंग का पॉइंट बनता है, लेकिन दिमाग में रखना कनेक्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं. किसमें? नहीं, आई एम टेलिंग दिस पॉइंट कि भाई मान लीजिए अभी दे आर टेलिंग कि भाई जिस टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, ठीक है, तो अभी सिर्फ उसी पे ही रखा जाए, बाकी सब प्रोविजंस पे माइनस एलिमिनेट कर दिया जाए. दैट इज वन ऑफ द वे फॉरवर्ड्स फॉर दिस जो बोला जा रहा है. वोटिंग पे भी नहीं होता पार्टी. हाँ, we will discuss this when the office of parliament comes. अभी भी रहने दो, ठीक है, बस जस्ट अंडरस्टैंड इस कंटेक्स्ट में. चलिए अगला क्वेश्चन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 15 women members. Who among the following was not a member of the constituent assembly? चलिए जी, उषा मेहता. हाँ, वेरी ट्रू. बाकी इस पे भी आगे लिख लो, रटने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है. 36 will not do, 37 will not do, 38 no, 39 no, 48 no, 41st no. हाँ, 40 क्या है जी? अच्छा चलो. At the time of Indian independence, the universal adult suffrage was granted to all the adult citizens aged 21 years and above. Yes, very true. The voting age was reduced to 18 years from 21 years in 1985 by 53rd Constitutional Amendment Act. नहीं, it was 61st in the year 1989. ठीक है, और इसमें आप कंफ्यूज कहां पे होते हो? 61st का इज 1989, उसके बाद आपको कौन सी मिलेगी? दिल्ली वाली 69th ईयर इज 91. ठीक है, तो ये 1 और 9 कंफ्यूज करेगा इन दोनों में, यहीं पे साइड में लिख लो. ठीक है, द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईयर इज 1989. It was related to the reduction of age with respect to people who can vote. Simultaneous, the amendment number is 69th, year is 1991, related to Delhi, LG वाला. ठीक है, और ये क्लिक इसलिए भी नहीं हो पाता, we think भाई एक साल में 10 अमेंडमेंट हो गई होंगी, हो जाती, फ्लेक्सिबल. चलिए, 41st we इसका आंसर would be, अच्छा, third statement, though the Indian constitution is federal, it provides only for a single citizenship. Yes, correct. Option number B is correct. ये नहीं करेंगे. Let's move to 42nd question. Consider the following statements with respect to committees of the Constituent Assembly. Committees of the Constituent Assembly conducted preliminary research on the subjects allocated to them. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखो कॉमन सेंस का, ये शब्द कहीं पे लिखने पड़े नहीं मिलेंगे. जो भी चीज आपको लगता है कि भाई दिस थिंग इज हैपनिंग, मेरी नॉलेज में नहीं है, एंड वो चीज पॉजिटिव है, वो हमेशा होगी. पॉजिटिव चीजों पे यूपीएससी कभी भी ट्रिक नहीं करता. ठीक है, जैसे ये चीज पॉजिटिव है कि भाई रिसर्च हुई होगी, अच्छी बात है, हाँ हुई होगी, राइट, क्योंकि इसमें यूपीएससी को भी क्या पता कि नहीं गए थे, नहीं करे, क्या पता एक बंदा निकल गया वो रिसर्च करने के लिए. तो दीज आर सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, इनको करेक्ट माना करो. ठीक है, यू एनालाइज एंटायर पीवाईक्यूज, यू विल गेट द आइडिया. Dr. B.R. Ambedkar was a member of multiple committees formed in the Constituent Assembly. Yes, he was. Minorities committee was there, finance committee was there with him. Lot of committees were there. ठीक है, यहां पे लिख लो B.R. Ambedkar की कमिटीज के नाम. ड्राफ्टिंग कमेटी के तो वो चेयरमैन थे. उसके बाद ही वॉज मेंबर ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, वो इसके चेयरमैन थे. बी आर अम्बेडकर इसके मेंबर थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के. दूसरा माइनॉरिटीज कमेटी. अच्छा जल्दी से बताओ, जो हमने करा था, कृपलानी जी के पास कौन सी कमेटी थी? फंडामेंटल राइट्स. ठक्कर के पास एक्सेप्ट असम वाली. जी जी, वंडरफुल यार, बढ़िया. उसके बाद लिख लीजिए फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी इनके पास. फाइनेंस एंड स्टाफ.
कमिटीज ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, एंड एफआर की कमेटी किसके पास थी? सब कमेटी वाज विद जेबी कृपलानी। एफआर की कमेटी किसके पास थी? पटेल के पास, नेहरू के पास थी। एफआर मेन सब चीजें नेहरू जी ने अपने पास रखी थी, स्टीयरिंग को छोड़ के। स्टीयरिंग किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद के पास। बस बस बस। कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। चलिए जी, बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन, which one of the following statements with reference to the Indian Constitution is not correct? The Constitution was adopted on 26 November 1949. ठीक है, we do hereby adopt, enact and give to ourselves. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? कौन सा स्टेटमेंट रहेगा? एडवाइजरी कमेटी ऑन एफआर, माइनर एंड ट्राइबल एक्जीक्यूटिव रजिस्टर कमिटीज। यस, दिस इज करेक्ट मैम, करेक्ट है ये। इसमें आई गेस 72 के करीब मेंबर्स थे, लिख लो 72 मेंबर्स थे इसमें। 50 से ये कमेटी शुरू हुई थी, 72 के करीब मेंबर थे। ये याद नहीं रखना है, आई एम जस्ट गिविंग यू फैक्ट्स, याद नहीं रखना, जो है मैं बता रहा हूँ कौन सी चीजें क्रैम है। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। अच्छा, कंफ्यूजन कहां पे होती है? अडॉप्ट, इनैक्ट, एनफोर्स। ठीक है, तो प्रियम्बल का टेक्स्ट 10 बार पढ़ लेना, कल हम प्रियम्बल करेंगे। आपने अगर किसी ने डेमो वीडियो देखा है, द मेन पिलर आई मेड हियर वाज कि भाई टेक्स्ट रटना है हमें प्रियम्बल का। रेपिटेटिव क्वेश्चन 17 के बाद 3 बार आ चुका है सिर्फ उसके टेक्स्ट से, कि भाई 1950 वाले ओरिजिनल टेक्स्ट में शब्द था या नहीं था। प्रियम्बल आपको कौन कौन सा जस्टिस दे रहा है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तीसरा एक और लिखा हुआ था, ये दे रहा है कि नहीं दे रहा। प्रियम्बल आपको किस चीज की लिबर्टी दे रहा है? और इसी प्रियम्बल के कंटेक्स्ट में से हमारे पास मेंस में भी क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 17 का क्वेश्चन था, क्रिटिकली एनालाइज ईच एंड एवरी वर्ड अटैच्ड टू द कीवर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। तो उसके लिए भी टेक्स्ट जरूरी है। सो टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल को 10-15 दिन पढ़ लो, गाने की तरह मन में बस जाएगा। ठीक है, तो उसके लास्ट में आता है, वी डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डेट। तो अडॉप्ट एंड इनैक्ट तो 26 नवंबर को ही कहानी खत्म हो गई। पीछे बचा एक शब्द एनफोर्स, मतलब लागू कब से करा? 26 जनवरी से। ठीक है, चलो। The date of commencement of constitution was chosen as 26 January because Purna Swaraj Day was celebrated on this date 1930. Yes, on the banks of river रावी के पास झंडा लहराया था किसने? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। Indian Independence Act, GOI Act were repealed with the commencement of the Constitution. Yes, एक एक्ट जो कंटिन्यू रहा कौन सा था? Abolition of Privy Council Act. बढ़िया यार। The adoption of Constitution contained a preamble, 395 articles, 10 schedules. ठीक है जी। 9th schedule was added in. हाँ, previous year question क्या था इसका? 9th schedule was added during the prime ministerialship of which prime minister? जवाहरलाल नेहरू। Wonderful. 44th नहीं करेंगे जी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बता दो कब आया एक्ट? 97th 2011 का एक्ट है ये। रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस बोथ द टर्म्स इंडिया एंड भारत इंटरचेंजेबली। ठीक है, यहां पे नोट करो 4 नाम भारत के। सबसे पहला नाम क्या है? आर्यवर्त। आर्यवर्त इज नहीं, सबसे पहला लिखो इसका भारतवर्ष। भारतवर्ष या भारत, दो माने जाते हैं, लेकिन वी विल गो विद कोर व्हाट एनसीईआरटी हैज टू से। एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा चैप्टर नंबर 2 क्लियरली हैज टू से नाम रखा गया भारत। क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ भारत ट्राइब। दूसरा जो कॉमन नॉमेनक्लेचर चलता है कि भाई जैन धर्म में जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके बेटे का नाम भारत था, वहां से नाम भारत आ गया। तो दोनों ऑप्शन अगर आ गए वैसे सही है माइथोलॉजी के हिसाब से, बट व्हाट वी विल बिलीव व्हाट एनसीईआरटी हैज टू से। यूपीएससी वहीं से आंसर की फ्रेम करेगा। ठीक है, सो भारत कहां से आया? भारत नाम की ट्राइब से। ठीक है, दूसरा लिखो नाम है भारत का इंडिया। व्हेन वाज इंडिया अनाउंस्ड? ब्रिटिशर्स द्वारा। कब? हेरोडोटस 470 बीसी। इंडिया नाम बहुत पुराना है, याद रखना। 470 बीसी, हेरोडोटस। हु इज हेरोडोटस? फादर ऑफ हिस्ट्री। ही गेव द नेम इंडिया। उसके बाद आ जाओ, तीसरा है आपका नाम आर्यव्रत। आर्यव्रत, व्हाट इज आर्यव्रत?
बेसिकली दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये मुझे याद कराना जिस दिन वेदास करेंगे ना, देन आई विल टीच यू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जम्बू द्वीप एंड आर्यव्रत। तो जो जम्बू द्वीप वाला मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट अभी के लिए समझ लो प्रिसाइजली, जम्बू द्वीप जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है उसका नॉर्दर्न एरिया इज आर्यव्रत। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड भी नोट करो 1000 BC, इसका भी 1000 BC है, लेटर वेदास में है ये, लेटर वेदास में मेंशन है ये। एंड लास्टली नोट द वर्ड हिंदुस्तान। When was the word Hindustan for the first time used? कहां से? लिखो ससानी इंस्क्रिप्शन, सैसनिड एम्पायर, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक्स ससानी इंस्क्रिप्शन या सैसनिड एम्पायर, उनकी इंस्क्रिप्शंस में पहली बार हमें शब्द देखने को मिला है हिंदुस्तान 273 AD में, 273 AD, ये भी नोट कर लो। ठीक है जी, तो नाम इतने ही है 4 इंडिया के, वो हो गए। सेकंड कम्स द हिंदी, इसलिए करवाया क्योंकि इस साल वो था ना, डिबेट चला था अभी प्रीवियसली, सो वी शुड बी रेडी विद ऑल द नेम्स, राइट। द हिंदी वर्जन ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया यूजेस द टर्म भारत इन प्लेस ऑफ इंडिया। यस, उसमें क्या है, भारत नाम पहले दिया गया है, भारत जो इंडिया ऐसे करके समथिंग। ठीक है, जैसे हमें इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया करके। There was unanimity among the Constituent Assembly members regarding the adoption of the name India along with Bharat as the official name of the country. There was unanimity थी यार, मुझे नहीं लगता, I don't think, नहीं थी यार unanimity। लेकिन ज्यादातर लोग का कहना था कि एक वो कंट्री मतलब सिर्फ भारत रखते हैं, नाम इंडिया नहीं रखते हैं, तो इस वजह से नहीं, there were lot of people, basically some people like हर्षवी पंत और ये सब ये चाहते थे कि भाई इसका नाम भारत वर्ष हो। सम पीपल वांटेड भारत हो, कई बोलते थे कि भाई हिंदुस्तान हो, कोई हिंदुस्तान को स्थान हटा के बोलते थे हिंद हो। सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल, बट फाइनली इंडिया दैट इज भारत रखा गया। ठीक है, तो कंट्रोवर्सीज थी यार, मेरा डिटेल्ड वीडियो जब ये चली थी वाईटी पे, आप लोग मत देखना, आई एम जस्ट टेलिंग, उसमें हैव डिस्कस्ड ऑल दीस डिबेट्स। तो डिबेट्स थे, बहुत डिबेट्स थे, मेनी पीपल वांटेड सम डिफरेंट नेम्स, बट फाइनली वी अडॉप्टेड इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इन प्लेस इस वजह से, जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया दैट इज भारत, उसमें भारत दैट इज इंडिया, तो इसकी जगह ये यूज कर दिया। अरेंजमेंट बोल रहा है वो, ठीक है, अरेंजमेंट वाला। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये करंट का क्वेश्चन है यार, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस कोड, ये आंसर हमें बताएगा राहुल। हाँ, नन ऑफ द अबव इज, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल, हाँ नन ऑफ द अबव इज द आंसर। आईपीसी को बेसिकली बोला जाता है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बोला जाता है नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, एंड एविडेंस को साक्ष्य, साक्ष्य। चलिए जी, आंसर वाज डी। ये बेसिकली क्रैमिंग वाला है। ऐसे क्वेश्चंस मैं बताता हूं, इन्होंने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डाल दिया है, लेकिन जो चीज अभी तक बिल के रूप में है वो बिल कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, जैसे अभी ओटीटी की रेगुलेशन का एक बिल चल रहा है, दैट विल नॉट बी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आईटी वाली, दे आर इंपॉर्टेंट क्योंकि उनका एक्ट बन गया है, राइट। तो ऐसी चीजें के ऊपर फोकस नहीं करना। चलो, उसके बाद आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट मियरली अ मैटर of following the letter of the constitution, it also requires a deep understanding of the spirit and intent of the constitution. Correct. Constitutional matter, morality is the matter of personal interpretation and there is no way to correct the no correct way to interpret the constitution. ये बताओ, wrong? ठीक है। अच्छा, इससे ना दो शब्द अगर और यूपीएससी कहीं से घुमा के दे दे, व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म? ये अभी भी न्यूज में था फिर से, बिकॉज दे आर, कल आज के न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल है कि भाई अडल्ट्री शुड बी रिक्रिमिनलाइज्ड, है ना, होमोसेक्सुअलिटी एंड अडल्ट्री शुड बी रिक्रिमिनलाइज्ड। उस कंटेक्स्ट में द कीवर्ड व्हिच यूपीएससी कैन आस्क इज मेजॉरिटेरियनिज्म। व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म? हाँ, नहीं, रूल ऑफ नॉट मेजॉरिटी, व्हेन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री गो इन लाइन विद व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री वांट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अपना नवतेज सिंह जौहर केस है, आपको क्या देखने में मिलेगा, जैसे सेक्शन 377 है ना, ये पहले क्या हुआ, नाज फाउंडेशन केस आया, उसमें उन्होंने क्या करा, रिक्रिमिनलाइज कर दिया, है ना। उसके बाद नहीं, सॉरी, उसमें इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। देन यू विल सी सुशील कुमार केस, दे रिक्रिमिनलाइज इट। फिर उसके बाद क्या आया, नवतेज सिंह जौहर केस, दे अगेन डीक्रिमिनलाइज इट। सो अगर हम सुशील कुमार केस में बोलें जिसमें दे रिक्रिमिनलाइज इट,
That was Supreme Court's majoritarianism approach, that what majority of the people want, this is majoritarianism. But how should the court act? Counter majoritarianism, right? This is also one of the facet of constitutional morality, that do what constitution is saying, not following what majority wants, because constitution says what? Individual liberty, right to privacy, and if someone has that, homosexuality should be allowed, section 377 should be allowed. So this constitutional morality का ही facet है, इसको याद दिमाग में रखना, ठीक है जी. Consider the following statements with respect to Constituent Assembly of India, elected members as the representative from provinces. Yes. 40th का C. 1 is correct, 2 is incorrect. ठीक है जी. चलिए, consider the following statements with respect to the Constituent Assembly of India, elected members as the representative from provinces. सही है. Was a fully sovereign body at the time of its creation? No, not at its time of its creation. क्यों? फिर से वही पॉइंट आएगा जो मैंने फोकस करा था क्लास में. Remember, Independence Act आया, then it got legal backing, फिर काम करना शुरू करा. Its composition was decided as per the provisions of the Cabinet Mission Plan. Yes, definitely. Who were the 3 members of Cabinet Mission Plan? Patrick Lawrence, Alexander, A.V. Alexander and Strafford Cripps. ठीक है जी, बढ़िया. नहीं, देखो, माउंट बैटन प्लान में उन्होंने कहानी बता दी थी. माउंट बैटन को बोला था भाई हमारी ये सलाह है, ब्रिटेन पार्लियामेंट में बोला तुम इंडिया में जाके उनके साथ डिस्कस वगैरह कर लो. माउंट बैटन ने उनको प्लान बता दिया, वो बोले ठीक है. जब माउंट बैटन ने फिर पार्लियामेंट में बताया कि भाई हाँ ये लोग प्लान से मान गए हैं, तो उन्होंने कुछ फॉर्मलाइज तरीके से पास तो करना था, तो उसी चीज को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रूप में पास करा गया ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा. कैबिनेट मिशन के ऊपर, कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर. Which of the following statements explains the term polity? It refers to any form of government or organized society, including a state, kingdom, or republic. ठीक है. It is an entity comprising of territory, population, government, and sovereignty. No. This is state. इसके आगे लिखो, this is state. It is a system of government in which power is vested in the people who rule either directly or through freely elected representatives. This is democracy. Democracy. It is a system of government where the authority of the government is defined and limited by a constitution. जहां पे भी शब्द limited, rule of law, FR दिखे, कौन है उसका आंसर? Constitutional ism. जी, किसी भी तरीके से हो सकती है. जैसे पॉलिटी हो गया ना ब्रॉड टर्म, इनमें यूपीएससी क्वेश्चन क्या देगा? जैसे उसने स्टेट की ब्रॉड टर्म दी थी. इफ यू रिमेंबर 2021 का क्वेश्चन था, बड़े बड़े पैराग्राफ दिए गए थे स्टेट के बारे में, तो उसमें एक ही चीज सही थी, बाकी चीजें मैच हो रही थी, लेकिन वो किसी और की डेफिनेशन थी. बोल सकते, इनफॉर्मली यू कैन से इट. नो बुक विल मेंशन, यू कैन से इट. न्यूज़पेपर पीपल कैन से इट. एडिटोरियल में मेंशन हो सकता है. ठीक है. अच्छा, वेट, डोंट गो. नोट डाउन द टॉपिक्स जो आज की क्लास में हम रह गए हैं, वो परसों करेंगे along with the acts. मुझे याद करा देना, these are the topics to be done. Right? What is constitution? लिखो constitutional monarchy and its examples. Constitutional monarchy and its examples. Difference between liberalism, socialism, and capitalism. Difference between socialism, liberalism, and capitalism. And examples. आगे लिखिए democracy, direct, indirect. Third लिखो basics of parliamentary presidential system, parliamentary and presidential system. You will see how beautifully we derive the concept of parliamentary system, presidential system from indirect democracy, and then we will compare both of these. बहुत प्यारा concept है, how they are related to democracy. We'll do this also. Then cohabitation system, cohabitation, chancellor democracy, hybrid system, ये रह गए. Negative and positive liberty, right versus left versus center, difference between unitary, confederation,
difference between unitary government, confederation, federation, and competitive, cooperative and combative federalism. Competitive, cooperative and combative federalism. इन पे क्वेश्चन कैसे फंसेगा? टर्म फेंक देगा, which of the following is this? Combative federalism आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है. What is combative federalism? Combative. What is combative? A very new term in the news. और एक और मैं आजकल टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस देख रहा हूं. They are asking now about gerrymandering in parliament. वो भी लिखो, gerrymandering भी करेंगे. जो हमें नहीं आता फिर वो किसी को भी नहीं आता. We go with this approach. देखो gerrymandering. And lastly लिखो difference between totalitarianism, oligarchy and anarchy. ठीक है, तो ये one day we'll keep 2-3 दिन में, ठीक है, जिसमें 2-3 दिन का टेस्ट का जो भी बचेगा हमारा स्टैटिक का सिलेबस we'll complete. Oligarchy and anarchy. चलिए जी, that's it then. Thank you so much. See you guys. StudyIQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.